انسان کا علم، اس کا ہنر، اس کا سکل پار ایکسلنس سگنیچر اور دستخط تب بنتا ہے کسی فیلڈ میں جب وہ دو چیزیں اس کے اندر ہوں. جب وہ اپنے جگر کو، اپنے کلیجے کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو ان دو چیزوں سے جب تک نہیں گزارے گا، اس کی زبان، اس کی آواز اور اس کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کے کلیجے اس کی آواز سے ہل جائیں. وہ تقریر کسی کا کلیجہ ہلا نہیں سکتی جب تک کہ اس انسان میں وہ دو چیزیں نہ ہوں. وہ انسان اپنا آئیڈیا بیچ نہیں سکتا کسی کو جا کے جب تک اس کے پاس وہ دو چیزیں نہ ہوں. ایک انسان ایک بڑی ٹیم بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں. ایک انسان اپنے ماں باپ کو قائل کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں. ایک انسان اپنے دشمن کو گرا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں. ایک انسان دشمنوں کو دوست بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں. ایک انسان دوستوں کو سجن، سجنوں کو امام اور اماموں کو قائد اور قائدوں کو میدانوں میں لا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں. ایک انسان شک سے یقین کی وادی میں آ نہیں سکتا، اضطراب اور کنفیوژن کی وادی سے آ نہیں سکتا، لا الہ الا ولا الہ الا کی وادی سے کبھی نہیں آ سکتا یقین کے اندر. مذبذبین بین ذالک کہ ہوائیں چلیں تو ادھر آ نہیں سکتا کبھی بھی جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر. انسان اپنے دل کا سائز اور کلیجے کا گردہ بڑھا نہیں سکتا، اپنے اندر وسعت بڑھا نہیں سکتا، غم برداشت کرنے کی طاقت بڑھا نہیں سکتا، تیز طوفانوں میں دیے جلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں ہو. وہ دو چیزیں بیٹا اگر زندگی میں تو نے سانس سے زیادہ اگر اپنی اس چلتی ہوئی سانس سے زیادہ اگر اس کی قدر نہ کی تو بیٹا زندگی کی اس سفر میں تو گر جائے گا. اور تو ایسا گرے گا زمین کے اوپر بیٹا کہ سایہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی سہارے دینے والا نہیں ہوگا. یہ جمال، یہ کمال، یہ جسم کی جوانی، یہ چڑھتا ہوا جنون اور یہ بغاوتیں جو انسان کے اندر ہیں جو اسے مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹھا کے پھینک دو ٹیچر کی عزت کو، اٹھا کے پھینک دو اسکول کے کریکولم کو، اٹھا کے پھینک دو اصول ضوابط قواعد کو، لاز کو، اٹھا کے پھینک دو زندگی کو. میں جس طرح چاہوں گا میں جیوں گا، می مائی سیلف اینڈ آئی. بس میں ایسی خودی، وہ خودی نہ اقبال کی خودی نہ کسی اور کی خودی، ایک عجیب ہی خودی، وہ تکبر سے بھری خودی کہ بس میں ہوں، میں اپنا وقت جیسے چاہے برباد کر دوں، میں ماں باپ کا پیسہ جو مجھ پہ لگ رہا ہے جیسے چاہے برباد کر دوں، میں اپنے اساتذہ کا لگا ہوا وقت جیسے چاہے برباد کر دوں. بیٹا پھر زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد تو محکوم ہوگا اور تیرے اوپر حاکم کوئی اور ہوگا. مگر زندگی تو بنی ہے تیز ہواؤں میں، سخت چٹانوں میں اپنا نام لکھنے کے لیے، کہکشاؤں اور افلاک کے اوپر ایک ستارہ بننے کے لیے، تنگ ترین حالات کے اندر ایک بڑا نام کمانے کے لیے، لوگوں کی تاریخ جو رقم ہوئی ہوئی ہے اس کے اصول بدلنے کے لیے، کم سے کم تنگی کے اندر بڑی سے بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے لیے. یہ کیسے کرے گا تو بیٹا جب تیرے جیسے 10 اور کھڑے ہوں گے مارکیٹ میں؟ کیسے کرے گا تو یہ زندگی کے اندر جب اینٹ اٹھاؤ گے تو 500 1000 گریجویٹس باہر ہوں گے؟ کیسے جاب ملے گی آگے؟ کیسے ایک مایا ناز کریئر بناؤ گے لائف کے اندر؟ تو وہ دو چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس کی کچھ عزت بن گئی ہے تو دے دوں. سننا چاہو گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بیٹا سونے کے حروف سے اپنے کلیجے کے اوپر یہ آیتیں لکھ دے، زندگی میں کوئی شخص تجھے کتنی بھی بڑی بات کر دے یہ آیت کبھی نہ مٹائیں اپنے دل کے اوپر سے. یہ تجھے ان ٹوٹی ہوئی حالات میں تیرا سہارا ہوگی یہ آیت. یہ الفاظ بیٹا میری یاد رکھنا. بیٹا آج تیری عمر چھوٹی ہے، عمر بھی کچی ہے، لیکن اگر یہ دو تو نے اپنے اندر دل میں ٹھوک کے ڈال دی نا اور کسی کو اجازت نہ دی زندگی میں کہ میں یہ دو چیزیں نہیں بدل سکتا، لیڈر ہے تو فیوچر کا انشاءاللہ. ایک نام ہوگا تو اور دل میں ایک اطمینان ہوگا کہ میں نے ایک بے ڈھنگی زندگی نہیں گزاری، میں نے فضول زندگی نہیں گزاری، میں محتاج نہیں ہوں. کلیجے میں ایک سکھ ہوگا، ایک ایسی خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے کم کے اندر اتنی دنیا ہلا دی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام انسان کو، ایک عام انسان، عام، نہ پیسہ نہ دولت نہ شہرت نہ کوئی بڑا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہ کوئی آکسفورڈ ہارورڈ یو پین سے پڑھے ہوئے لوگ، عام انسان. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک قوم کو، ایک انسان کو امام بناتے ہیں، لیڈر بناتے ہیں، پار ایکسلنس سگنیچر بناتے ہیں، اس کو دستخط بناتے ہیں اسے اس فن کا. یہدون بامرنا، ہمارے حکموں کے تحت وہ پرفارم کرتا ہے، ہدایتیں دیتا ہے. دو کام جب وہ کر لیتا ہے، تیار ہو؟ ریڈی؟ لما صبروا
वकानु बिआयातिना युकिनून, जब उसकी नफ्स के अंदर सब्र आ जाए, सब्र अपने मिजाज के खिलाफ, सब्र अपने अंदर की नफ्सियात के खिलाफ, लोगों की धुतकारों के खिलाफ, लोगों की बातों के खिलाफ, अट्रैक्ट करती हुई गंदी चीज़ों के खिलाफ, टीवी के खिलाफ, गंदे दोस्तों के खिलाफ, तबाहकुन महफिलों के खिलाफ सब्र आ जाए उसके नफ्स के अंदर कि मैं पटरी से नहीं हिल सकता अगरचे मज़े की बड़ी चीज़ लग रही है, मैं किताब नहीं छोड़ सकता अगरचे दोस्त ने बुला लिया है गलत काम के लिए, सब्र। मैं सब्र नहीं छोड़ सकता अगरचे लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं बैठ के, सब्र कि मैं गिर नहीं सकता, मैं गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, लेकिन छठी 7वीं 99 कत्ल वाले के बाद अगर 100वें के ऊपर उसकी तौबा हो सकती है और एडिसन 999 बार खड़ा हो सकता है, मैं भी नहीं पीछे हटना, मैं भी लगा रहूंगा। ऐसा सब्र, वो सब्र जो आसमान वाले को कायल करता है कि तू जमीन के ऊपर हालात बदल, वो सब्र जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस कैद का सब्र कि जब उन्होंने सदियां काट दी वहां पर और एक आदमी जब जा रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भाई एक औरत ने इस तरह ज्यादती की थी, तो हाकिम नु जाके तू कहीं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो वो भी भूल गया, लोग भी तुझे भूल जाएंगे। वो सब्र जब तुझे तन्हाइयों में छोड़ दिया जाएगा, वो सब्र जब कोई नहीं तुझे याद करेगा कि तेरे दिल के कलेजे में दर्द क्या हो रहा है, वो सब्र जब लोग तेरे अंदर के आंसुओं को पहचान नहीं सकेंगे, वो सब्र जब तेरा लोहा चल ही नहीं रहा होगा, वो सब्र जब तेरी तकरीर बिक ही नहीं रही होगी, वो सब्र जब लोग जानते होंगे तू हक पर है लेकिन तेरी बात नहीं मानेंगे। अगर अल्लाह कहता है हम पहाड़ चला देते हैं और कुत्तियत बिल अर्द और जमीनें फाड़ देते हैं और कुल्लिमा बिल मौता और मुर्दे कलाम करना शुरू कर देते हैं, इन्होंने फिर भी नबी की गल नहीं मानी, दे नेवर गोना लिसन टू द मैसेजेस ऑफ गॉड। ये तब भी लोग नहीं, अगर नबियों जैसी की नहीं बात मानी गई तो तेरी बात कैसे सुन लेंगे लोग, बच्चे कैसे मान लेंगे लोग तेरी बात को। वो सब्र कि जब लोग तनकीदों के बाजार करेंगे तेरे खिलाफ, जब क्रिटिसिज्म के बाग खुलेंगे तेरे खिलाफ, वो सब्र जब हक का कलमा कहने के ऊपर, हक की जिंदगी जीने के ऊपर और हक के शियार अपनाने के ऊपर तेरा मजाक उड़ाया जाएगा, हंसेंगे लोग तेरे आइडियाज के ऊपर, तेरे नजरिए पे हंसेंगे लोग, बाजार गर्म होंगे तेरे मजाक और तमस्खुर के बाजार गर्म होंगे तेरे खिलाफ। वो सब्र अगर तू अपने नफ्स के ऊपर सब्र कर गया बेटा, वो वक्त काट गया उस टाइम पर। अगर वो बच्चा यहाँ बैठ के इस टाइम पे जिसका नफ्स उसे कह रहा है वलकद नालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, वो कलेजा जो उसे कह रहा है कि कब इस मौलवी की तकरीर बंद हो और कब जाके मैं बैठूं और अपना एंड्रॉइड खोलूं और अपना व्हाट्सएप खोलूं, वो सब्र जो अपने आप को बिठाता है क्लास के अंदर, वो सब्र जो उसका नफ्स जितना कह रहा हो वो गलत चीज नहीं खोलता, वो लगा रहता है, वो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, किताबें उतार लेता है अपने अंदर। अगर ये पहली चीज अगर उसमें आ गई ना, सब्र, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, नियत, इरादा, कसद, अज़म, कुव्वत इरादा, ये तेरी चीज पक्की हो गई बेटा, जिंदगी के अंदर इंशाल्लाह तेरा स्पिरिचुअल और फिजिकल मसल कभी कमजोर नहीं होगा, तू वो काट लेगा वहां से। और दूसरी चीज अल्लाह कहता है वकानु बिआयातिना युकिनून, सर्टेनिटी, यकीन, कन्विक्शन, परसेप्शन, डिटर्मिनेशन, यकीन ना छड़ी पुत्र, अल्लाह पर यकीन ना छोड़ी, कभी अपने आप पर भी यकीन ना छोड़ी, हालात पर भी यकीन ना छोड़ी, ये सब बदलेगा तेरे लिए, ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा एक दिन तेरे लिए। ये सिर्फ अल्लाह देख रहा होता है कि कितना दम है हमारे आदमी के अंदर, या तेरे अंदर कुछ कमी होगी, उसको पूरा करने से पहले तो ये तरक्की नहीं देगा अल्लाह, यकीन रखी, शक में कभी ना पड़ी। अल्लाह अपने साथ रिश्ता जोड़ता है इंसान का तो सूरह बकरा का आगाज करता है ला रैबा फी, शक को खत्म करके अल्लाह ताला रिश्ता बनाता है बंदे के साथ कि शक के नाल तू मेरे नाल नहीं चल सकता, तो शक ना पाली अपने अंदर कभी, यकीन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ी कि ये पहाड़ मैं सर करके छोड़ूंगा, मैं अपने दुश्मन का कलेजे के अंदर से दिल बाहर निकाल के जमीन पे छोड़ दूंगा और अपनी जीत क्लेम करूंगा। एक हार से कभी शक में ना पड़ी, लोगों की बातों से शक में ना पड़ी, शैतान के वसवसों से शक में ना पड़ी। ये तो सब बनाया इसलिए गया है कि आसमान पे एक बदबख्त ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं बताऊंगा लाहतानी करना ज़ुर्रियत हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि आदम की नस्ल कर नहीं सकती। दे नॉट मेंट वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम के मिज़दाक में तूने सही नहीं किया अल्लाह मेरे साथ, तूने मुझे
सजदे का हुक्म देके सही नहीं किया है, मैं साबित करूंगा कि ये नाकाम यहाँ था। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मैं तुझे दिखाऊंगा ये ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकता, ये शुक्र नहीं दे सकता, ये कुफर ही करेगा तेरा। तो बेटा यकीन रखेगा तो उन तन्हाइयों में, उन खामोशियों में तुझे आवाज़ सुनाई देगी, तुझे अल्लाह की भी आवाज़ सुनाई देगी। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू होगा तेरे साथ कि तू दिल की आंखों से रब के मौजे देखेगा इस दुनिया में। तू देखेगा तेरे लिए फौजें काम कर रही हैं, आके आसमान जमीन की फौजें तेरे साथ काम कर रही होंगी। लेकिन दो चीजें, सब्र, पेशेंस और यकीन, सर्टेनिटी, ये दो चीजें जिसमें आ जाती हैं उसे हालात गुमराह नहीं कर सकते, वो टिका रहता है, उसका वजूद अदम में नहीं जाता कभी भी। और ये चीजें ही लीडर बनाती हैं आगे जाके। किताब तो हर कोई खोल सकता है, मगर मुस्तकिल मिजाजी से किताब खोलना, रोज किताब खोलना, रोज डिसिप्लिन को फॉलो करना, रोज जो तेरे ऊपर डंडे दिए हुए लोगों ने कि तू है करना ही करना है, इसको एक दफा बर्दाश्त कर ले अपनी जिंदगी में। अपने बागी नफ्स को आदत डाल उसूलों के साथ चलने की। इसे बेढंगा, बद तहजीब, बद अखलाक होने की बहुत सख्त बीमारी है। इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह ताला कहता है तेरे अंदर का आप तुझे कभी अच्छी बात नहीं करेगा। अपने नफ्स पे भरोसा ना करी बेटा, जो बड़े कह रहे होते हैं उसके अंदर एक खैर होती है। काश हम तेरी उम्र में आके बता सकते होते कि वाकई हमें भी इस उम्र में बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन भरोसा और एतमाद कर ले, मैं तुझे कह रहा हूँ, मैं तुझे कह रहा हूँ, हर चीज ठीक नहीं होती जो सब लोग बना लेते हैं। बहुत सी चीजें इधर भी होंगी इस दुनिया के अंदर जो तुझे ठीक नहीं लग रही होंगी। इसको अपने कलेजे में उतारना सीख बच्चे। तेरा एक वक्त आएगा जब तू चेंजेस लाई, जब तू तब्दीली की बात करी। लेकिन ये वक्त मुंह से बातें हाँकने का नहीं है, ये वक्त अपनी बातें बढ़ाइयां झाड़ने का नहीं है, ये वक्त जब्त करने का है, सख्त करने का उसको अपने अंदर, और इसको अंदर पाल के बैलेंस करके एक वक्त आएगा जब तू बात करेगा इस स्टेज पे, इन मिंबरों पे खड़े होके, लोग तेरी बात सुनेंगे उस टाइम पर। लेकिन ये और आखिरी मेरी नसीहत, इमाम शाफी का एक कॉल पेश करता हूँ आपके आगे। इल्म बितूली ज़मानिन, बेटा इल्म बहुत लंबे ज़माने के बाद आता है, कामयाबियाँ बहुत ज़माने लेती हैं आने के बाद। सदियों कटना पड़ता है, सदियों जलना पड़ता है, तब जाके कहीं चमन में फूल उगता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बेटा ये जल्दी क्विक ट्रिप्स, जल्दी कामयाबी, शॉर्टकट्स, चीटिंग, प्लेजरिज्म, छपाई, कॉपी पेस्ट, ये शायद बचा लेगी तुम्हें आज। लेकिन जिंदगी की जंग में वो पट्टा जो अपना पूरा होमवर्क करके आया होगा, जो अपना वक्त लगा के आया होगा, जो किताबें चाट के आया होगा, और जो कॉन्टेम्पलेशन करके आया होगा, और जो तफक्कुर करके आया होगा, और जो तदब्बुर करके आया होगा, और जो तज़क्कुर करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल कौन करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल शरअ करके आया होगा, जो तफसीरें पढ़ के आया होगा, जो कायनात पे, जो अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ खुलिकत, ऊंटों पे गौर फिक्र करके आएगा, और मेहनत करके आया होगा, और सीधे रास्ते से काट के आया होगा, और कलेजा और दिल बड़ा करके लाया होगा। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना, ब्याह करके नहीं आया होगा। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना, ब्याह करके नहीं आया होगा। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना, ब्याह, कान, आंख, दिल जो है उसने इधर उधर नहीं दिए होंगे। आप उस पट्टे को नहीं हरा सकते फ्यूचर के अंदर। चीटर, प्लेजरिस्ट, शॉर्टकटर, डिमेंटर्स, ये कभी भी एक ओरिजिनल मसल पट्टे को कभी नहीं गिरा सकते। जीत उसी की होगी जिसने सारे मामले ठीक रखे होंगे, जिसने रब को भी राजी रखा होगा, जिसने अपने स्कूलों को भी राजी रखा होगा, जिसने माँ बाप की भी काटी होगी, और जिसने अपने नफ्स पर भी सब्र किया होगा। जीत उसी की होगी जो बर्दाश्त करके आया होता है। जिन्होंने इधर उधर अपने मामले खराब किए हुए होते हैं तो वहां जाके वो मैच वो हार जाते हैं, और फिर हम चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है ना तुक्के में जीत जाए। तुक्के और फ्लूक में दुनिया नहीं बनती, महज इत्तफाक नहीं है बेटा, ना ये कायनात महज इत्तफाक है, ना ये वजूद महज इत्तफाक है, ना ये दस्तखत महज इत्तफाक है। लोगों का लोहा गल गया इसको बनाने के अंदर। ये एक पिलर नहीं खड़ा कर सकता जिंदगी में बेटा। इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी करने के लिए तुझे बहुत सब्र चाहिए, बहुत यकीन चाहिए, बहुत तहम्मुल चाहिए, सर्टेनिटी, कन्विक्शन, परसिवेरेंस, कंसिस्टेंसी, परसेप्शन, परफॉर्मेंस, रीजनिंग, रैशनैलिटी, प्रोडक्टिविटी। इन अल्फाजों को अपनी जिंदगी का शियार बना। कुछ अरसे के बाद देखी कैसे तेरी आवाज में वो तासीर होगी कि लोग आके बस तेरे साथ बैठ जाएंगे, बोलेंगे भी कुछ नहीं। कहीं सुनी बात में जो गलतियां मैंने की होंगी, मैं सबसे माफी मांगता हूँ और अल्लाह से भी माफी मांगता हूँ जो मैंने अपनी तरफ से 4 बातें लगा दी। जो हक मैंने सुनाया, अगर मैं मुखलिस था उसको सुनाने में, तो वो कल भी अल्लाह और उसके लोगों का था, आज भी है। मैं रहूं ना रहूं, ये बातें हमेशा बड़े लोगों की रहेंगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।
ज़िंदगी में इंसान की अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन ना हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि इंसान अपनी लाइफ में टर्न मार के या टर्न लेके उसको सही नहीं कर सकता, मगर जो इंसान का जो कल्बी स्ट्रेस लेवल है ना, जो स्ट्रेस लेवल है उसका एक्सर्ट करने का, अपने आप को एग्जॉस्ट करने का, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान थक जाता है। तो इंसान की ज़िंदगी अपने करियर से रिलेटेड हो या अपने रिश्तों से रिलेटेड हो या अपनी कुलियात के लिहाज से हो या जुजियात के लिहाज से हो, इंसान की ज़िंदगी इज़ अबाउट मूविंग फ्राम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, फ्राम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, हत्ता याती कल यकीन इस हद तक इंसान को मौत आ जाती है। इट नेवर एंड्स अप। बहुत लोग समझते हैं कि शायद इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी लाइफ के रोल्स ख़त्म हो जाते हैं। नो, इट्स नेवर लाइक दैट। ये ज़िंदगी हमेशा कुछ ना कुछ आपको देगी, कुछ ना कुछ करने के लिए। बट राइट नाउ दिस इज़ योर प्राइम, दिस इज़ द एज ऑफ योर प्राइम, मतलब जवानी, जमाल, कमाल अपने पीक पर होगा इस टाइम पर। ये वक्त है कि इंसान जो है ना अपने सारे स्पिरिचुअल, फिजिकल, रूहानी, हिस्सी मसल्स एग्जॉस्ट करता है बड़ी सल्तनतें बनाने के लिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, एवरीबॉडी विल बी हैंडलिंग एन एम्पायर एंड एवरीबॉडी विल बी क्वेश्चन रिगार्डिंग कि उसने सल्तनत और रियाया के साथ क्या किया। तो हर इंसान की अपनी अपनी सल्तनत होनी है, जिसमें लोग होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, और उसके अंदर उसके रिसोर्सेज होंगे, और उस रिसोर्सेज को एलोकेट करके, उन रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करके उसने कितनी बड़ी दुनिया बनाई। ये सवाल तो बच्चों तुमसे आज या नहीं कल कौमें भी करेंगी, तुम्हारे लोग भी करेंगे, तुम्हारा जिस्म भी करेगा, और अल्लाह भी करेगा तुमसे एक दिन। सो एक उम्र अच्छी होती है जिसमें इंसान लॉस्ट होता है। गुम होना बहुत अच्छी बात है, जो गुम नहीं हुआ वो रास्ते कैसे दिखाएगा लोगों को। मगर कंफ्यूजन और इस्तराब जिंदगी की कभी भी परमानेंट स्टेट नहीं रह सकती। इस जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप फिर भी कहेंगे मैंने गल ही नहीं समझ आती पई, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। ये जिंदगी क्या है, मेरा करियर क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा वजूद क्या है, ये कायनात क्या है, लोग क्या है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी को एक मीनिंग ज़रूर देना। यू हैव टू गिव मीनिंग्स टू योर लाइफ, टू योर एग्जिस्टेंस। अपने वजूद को एक रीज़न देना पड़ेगा आपको। हैरत की बात है जो लोग खुदकुशी करते हैं, मैं तो माइंड साइंसेस के ऊपर छोटा सा शागिर्द हूँ उसका। आई मीन इट्स सो हार्ड टू स्वॉलो। अभी देखें चेस्टर ने जैसे खुदकुशी कर ली हो, लिंकन पार्क का जो था। इट्स सो इतनी अजीब, मुश्किल और दुख भरी बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को कोई मीनिंग नहीं दे सका। इट्स वेरी हार्ड, यू नो। इतना कुछ है करने के लिए, इतना कुछ है उस फील्ड में अपने आप को एक सिग्नेचर बनाने के लिए, एक दस्तखत बनाने के लिए, एक मार्क बनाने के लिए। मगर फिर भी एक इंसान को अगर कोई ज़िंदगी में कोई विजन नहीं मिला, कोई मकसद नहीं मिला, कोई गोल नहीं मिला, कोई टारगेट नहीं मिला, तो इसे हम अपनी ही कमज़रफ़ी और अपनी ही इनएफिशिएंसी और इनफेक्टिवनेस कहेंगे कि हम इंसानियत को इगरा नहीं दिखा सके। एज अ कम्युनिटी, एज अ पर्सन, एज एन आइडियोलॉग, नज़रियाती लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से, रूहानी लिहाज से हैरत की बात है कि आज हमारे बच्चे, हमारे लोग टूट रहे हैं। और कंप्लेंट बॉक्सेस का एक इतना बड़ा सिलसिला है शिकायतों का कि अल्लाह भी साथ नहीं दे रहा, लोग भी साथ नहीं दे रहे, माल, रिसोर्सेज, अशिया भी साथ नहीं दे रहे, बीवी भी साथ नहीं दे रही, खावन भी साथ नहीं दे रहा, बच्चे भी साथ नहीं दे रहे, कायनात ही साथ नहीं दे रही, तो मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। ये एक हारे हुए शिकस्त याफ्ता शख्स के कलिमात तो हो सकते हैं, बट जिसने ज़िंदगी के अंदर सही तरीके से जिया है ना, उसको द आर्ट ऑफ लिविंग जो हम कहते हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग, तो हो नहीं सकता कि वो किसी मकाम तक ना पहुँचा हो। मैं यहाँ के आपको जुजियात और स्पेसिफिकेशन में तो हर इंसान यूनिक है, तो फतवा भी यूनिक ही होगा, मगर कुछ कुल्ली ऐसे जनरल कायदे आपसे शेयर करने आया था कि शायद शायद प्रोबेबली अगर किसी की डोर अटकी हुई है ना कहीं पर, या किसी का जो वॉक है, द वॉक ऑफ लाइफ, द वॉक टुवर्ड्स एक्चुअलाइजेशन एंड सक्सेस, वो सफ़र जो हमने माँ के पेट से शुरू तो किया था, फिर उसको ठोकरें लगती नहीं, उसको मुख्तलिफ आइडेंटिटी क्राइसिस लगते रहे, फिर वो कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी फलान, कभी बाल यूँ, कभी यूँ, कभी यूँ, फिर पूछल पीछे से यूँ, कभी यो, कभी शो, वो जो भी है, तो वो जिधर भी ठोकरें खा रहा है ना इस टाइम पर, शायद उसको एक डायरेक्शन मिल जाए, इट माइट हेल्प यू आउट। बेटा ज़िंदगी के अंदर अक्सर कौमों का विजन ही नहीं है, ना लोगों का, ना विजन लेस लोग हैं।
اس لیے ان میں ڈپریشن, اداسی, مایوسی, چھوٹی چھوٹی بات پہ 2 روپے کے جھگڑے, 2 روپے کے مسائل کیا اے نہیں سمجھ آتا پیا, کیوں نہیں سمجھ آتا پیا, بس نہیں سمجھ آتا پیا, ضد ہے میری, اتھے ہی کھلو گیا ہے, اگے نہیں جانا پیا. تو یہ جو ڈیڈ لاکس لائف میں لگتے ہیں نا ہماری زندگی کے اندر, اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی اتنا ہماری زندگی اور ذات سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہوتا جس کے تحت ہم کہیں یار فائن, واٹس دا بگ ڈیل, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے پاس اس سے بڑی چیز ہے, یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے میرا, چلو ٹھیک ہے میرے گوشت کا 20% حصہ تمہیں چاہیے لے لو, میں 80% سے بہت بڑا ہوں, یو کانٹ کل می, یو کانٹ نیل می ڈاؤن. لیکن جب ایک انسان کی زندگی میں ویژن نہیں ہوتا نا تو وہ پھر چڑھتا بھی ہے, گراؤچی, کرینکی, چڑچڑاپن, موڈ سوئنگز, چھلانگیں, گلاٹیاں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی فلان زیادہ بول رہا ہے, ہر کسی کو امپریس کر رہا ہوگا, میں یہ میں وہ, میں نہیں ختم ہوں, کیونکہ وہ ایکچولائز نہیں ہوا ہوتا, حقیقت تک نہیں پہنچا ہوتا اپنی ذات کو لے کے. بٹ وین یو فائنڈ اے ویژن ان لائف, دا ریئل ٹرو مقصد اینڈ ویژن آف لائف, وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں, وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ دیکھیے گا وہ ٹھنڈ آ جائے گی اس کے اندر, ہی ول بی سائلنٹ. وہ کہتے ہیں نا جس کو علم ملتا ہے اسے خاموشی لگ جاتی ہے, یعنی اسٹاپس دا یپ 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 گوئنگ آن, خاموشی لگ جاتی ہے اس کو, وہ ڈوب جاتا ہے کسی چیز میں, اور پھر اسے کھڑا کرنے کے اندر جو اس کو پتا ہوتا ہے نا, جسے کائنات ہلانی ہے, آپ کو ایک سنجیدگی ملے گی لوگوں کے مزاج کے اندر. جو لوگ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ کام کرتے ہیں نا بیٹا وہ بولتے نہیں ہیں, جو بولتے ہیں نا وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جو گزر رہے ہوتے ہیں نا تکلیفوں کا, یہ آگ کا سمندر ہے, ڈوب کے جانا ہے, یہ آسان کام نہیں ہے زندگی میں کچھ بننا, بہت مشکل کام. لائف از ہارڈ, لائف از اے ہارڈ واک آف لائف, یو نو اٹس ہارڈ واک. زندگی ایک سخت سفر ہے, اور اس سفر میں سب سے زیادہ مشکل اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, لوگوں کو نہیں. سب سے مشکل ٹاسک ہے یہ جو اپنے اندر بیٹھا ہوا یہ جو غلیظ نفس ہے نا, یہ ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے. اس نفس کی وجہ سے ہی آپ دشمنوں کو دوستوں کو دشمن بنائیں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ دشمنوں کو دوست بنائیں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ غیر اہل کو اس کی جگہ دیں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ ویلیو سٹینڈرڈائزیشن کی بیسس کے اوپر متعصب ہوں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ وہ کلیم کر دیں گے جو آپ کے پاس ہوگا نہیں, تکبر. اسی نفس کی وجہ سے آپ وہ چیز کلیم کرنا چاہیں گے جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے, جسے ہم کہتے ہیں حسد. اسی نفس کی وجہ سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو انفیریئر, ہلکا سمجھیں گے لوگوں سے. اسی نفس کی وجہ سے آپ میں فضول میں ایک میں ہوگی جس کی وجہ سے آپ اپنے ویژن, اپنے مقصد کو اٹھانے کے لیے لوگوں کو ساتھ نہیں جوڑ سکیں گے. اسی نفس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنے سے دور کریں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ ٹائم ضائع کریں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ ریسورس ضائع کریں گے. یہ سارا مسئلہ ہی نفس کا ہے. میں جو ہے نا, یہ میں بڑا پرابلم ہے بھائی. میں کیوں ہلکا ہوں, میں کیوں میں انا ربکم الاعلی. یہ میں ایک حد تک چلی گئی کہ اس نے خدائی کلیم کر دی اس دنیا کے اندر. وہ کہتا نہیں میں نے بارش برسائی, میں ہی بچے دیتا ہوں, میں ہی سب کچھ کرتا ہوں, جو فرعون نے کیا. اور کبھی کبھی یہ اس میں کو اس لیول پہ جا کے غلام بناتا ہے کہ وہ پوری بنی اسرائیل ہو جاتی ہے. وہ اپنے پوٹینشیل میں بلیو ہی نہیں کر پاتا, وہ مان ہی نہیں پاتا کہ میں بھی کوئی بڑی چیز کھڑی کر سکتا ہوں. غلامانہ سوچ میں بھی خواب دیکھنا آسان نہیں ہے, اور تکبرانہ سوچ میں بھی خواب دیکھنا آسان نہیں ہے. کیونکہ متکبر شخص خواب اس لیے نہیں دیکھے گا کیونکہ اسے محنت کرنی پڑ جائے گی, اور اگر وہ محنت کرے گا تو پھر غلاموں نے کیا کرنا ہے. اور غلامی کے اندر خواب دیکھنا اس لیے کفر ہوتا ہے کہ بھئی اصل کام تو ان کا ہے, ہم تو مزدور ہیں, ہم نے تو روز ہمیں پھینٹی پڑنی اور وہ ہماری ایکچولائزیشن ہی پھینٹی ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی خواب ہے, واقعی کوئی خواب ہے, آپ اپنی عزت کرتے ہیں, آپ اپنا احترام کرتے ہیں, you respect yourself and you have that self dignity in yourself کہ I'm not a trash or a garbage, میں کوئی کچرا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی بھی جیسے چاہے ٹریٹ کر دے. تو ایسے لمحات میں بچوں زندگی میں خواب دیکھنے کے لیے, خواب سوچنے کے لیے اور خوابوں کو تعمیر دینے کے لیے سب سے بڑا لوہا جو چاہیے نا, وہ اپنے سینے کے اندر آپ کو بنانا پڑے گا. دیٹ از یور اون ہارٹ, آپ کا اپنا دل, وہ روح, وہ نظریہ, وہ فکر, وہ تفکر, تذکر, تدبر, دیٹ انٹرنل انٹینشنل آپ کی قوت ارادہ, قوت استدلال, وہ سارا جو آپ کا قلبی نظام ہے اندر کا, جو سوچتا ہے, سمجھتا ہے, ریزن کرتا ہے, ویلیو ایڈیشن کرتا ہے, چیزوں کو اینالائز کرتا ہے, حق اور باطل کی تفریق کرتا ہے. اف دیٹ از ناٹ ان یو, اگر آپ یہ نہیں کریں گے, آپ اس دنیا میں یہ 4 سال کا بیچلرز نہیں کر سکتے. یہی عذاب بن جائے گا آپ کے لیے. یو وونٹ بی ایبل ٹو ہینڈل دس. اور کیا ابھی آپ کو مسائل نہیں آ رہے ہوں گے نفس کے, کیوں جاؤں اسکول, کیوں کلاس اٹینڈ کروں, کیوں اس مولوی کی سنوں, کیوں کسی کی بھی سنوں. نفس ہے نا,
नफ्स किसी के अंडर नहीं आता। इसलिए सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाते हैं इन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, इंसान का सबसे गलीज एलिमेंट अगर कोई है ना तो उसके अंदर की आवाज़ है, उसका नफ्स, जो उसे कभी सही बात नहीं करने देगा, ना सही बात सुनने देगा, ना सही बात एनालाइज करने देगा, ना हक और बातिल की तफरीक कराएगा, ना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में तफरीक कराएगा, ना कभी मुस्बत और मनफी के बीच में तफरीक कराएगा, ना कभी भी ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म के बीच में तफरीक कराएगा। नफ्स को कभी हक पसंद नहीं है, नफ्स को कभी सच्चाई पसंद नहीं है, इसे तनकीद पसंद नहीं है, इसे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। इसे पसंद है तो वो सारी डंडियां मारना, कर्टेलिंग, शॉर्ट कटिंग, जिग जैगिंग, वो सारे मवाद इसको आप पिलाएं, झूठ पिलाएं, आप देखें कितना खुश होगा ये। इसलिए जिंदगी में अगर आप अपने किसी विजन को, किसी ख्वाब को लेके अगर बढ़ना चाहते हैं, रिमेंबर वन थिंग, आपको खारिज से तो बाद में कौमें मारने आएंगी। आपके ख्वाब आपकी जुबानों के ऊपर जब आपके ख्वाब आपकी जुबानों पे जब आएंगे तो ये तो बाद में होना है कि लोग आपको मारने आएंगे। आपका अपना नफ्स ही इतना आपको जलील कर देगा, इतना झुका देगा, वो मानने नहीं देगा कि आप कोई चीज है, वो मानने नहीं देगा कि आप कुछ कर सकते हैं, वो मानने नहीं देगा कि आप एवरेज से अच्छे इंसान हो सकते हैं, वो मानने नहीं देगा इस एलिमेंट को कि मैं इस अजाब में इस जहन्नम से निकल सकता हूं जहां तक मैं लेके आया हूं। वो आपको मानने नहीं देगा कि मैंने ये छिचोरी हरकतें नहीं करनी, मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं इस जैसा इंसान नहीं हूं, मैं इन गलियों और सड़कों और अपनी जिंदगी जाया नहीं कर सकता, मैं इन फारिग लोगों के साथ सुट्टे लगा के और चरसे पी के और पार्टियां करके टाइम जाया नहीं कर सकता। आई एम फार मोर ग्रेटर देन दैट, मैं उससे काफी बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं इन चीजों से कि इसकी बात मुझे इंटिमिडेट कर दे या इसका ताना मुझे इंटिमिडेट कर दे। इफ यू आर लार्जर देन लाइफ, यू नो कि बाय द एंड ऑफ द डे मेरा नाम सुर्खियों में लिखा जाएगा और ये कुछ भी नहीं होना। So the one who wants to create big empires, बेटा, they talk less and they work a lot. They work a lot on themselves. सबसे ज्यादा काम अपने आप पे करना पड़ता है, फिर कायनात पे काम करना पड़ता है। So आप देखेंगे अगर आपकी जिंदगी में विजन नहीं है ना, आप देखें आप में गुस्सा होगा, आप में मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ी होगी, आपको दबा के चिड़ होगी, मतलब इतनी सी पिन नहीं करनी किसी ने, मैं रबूथा पान देने में थे, ये वाला मिजाज होगा आपका। हल्की सी चीज आपको इतना ज्यादा इंटिमिडेट करेगी, इतना। आप देखें ना कुछ लोगों का मिजाज है, ऐसा मिजाज हमारे लोगों का आप सोच नहीं सकते, मिनट में दिमाग घूम जाता है। बात है ना टॉक टू द हैंड, मैं तेरे नाल गल ही नहीं करनी, मैं तेरी शक्ल ही नहीं देखना, इतना मिजाज क्यों है? क्यों इतना गुस्सा पालने का भी वक्त किसके पास है बेटा? इतनी इश्क आशिकियां कैसे लगा सकता है एक आदमी? इतनी गुफ्तगुएं, इतनी जुबान कैसे चला सकता है? जब उसने जमीनों को आसमानों से मिलाना होता है, वो कैसे इतनी बातें कर सकता है? वो कैसे इतना वक्त जाया कर सकता है? वो कैसे इतनी फटीके पाल सकता है? जी फलां की इसने अगर गुची पहना है ना, मैं अरमानी लेके आऊंगा, ये पॉल फ्लेरी पहना है ना, मैं पातेक फिलिप लेके। इतनी ब्रांड कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है? जिस इंसान ने कुछ बनाना होता है बेटा, वो तो अपनी जिंदगी को आग में डालता है, भट्टी में डालता है अपने आप को, क्योंकि उसने पहले तो निकलना होता है अपने, मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं महाजिर हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं सोशल क्लास हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं फलान हूँ, वो इन कल्ट से ही निकलने की उसकी जंग बड़ी सख्त होती है। फिर उसने जब अपने विजन बगैर टीम के तो हो नहीं सकता। ये किसने कहा है कि मैं ही मैं हर जगह? ये मैं कैसे हो सकती है? कौमों को अपने अंदर जम करने का जज्बा, आप एक कैसे इतना बड़ा तामीर कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? कुछ अगर लोगों को एंगेज नहीं करेंगे अपने साथ, आप कैसे आप कौमों को कन्विंस करेंगे? मैं यहाँ बैठ के अगर बोंगियां मारूं, मैं कायल कर लूंगा इतने बड़े लर्नेड इंस्टीट्यूट में किसी को? आपको कौमों को कायल करने के लिए तजर्बा लाना पड़ेगा, तजर्बे के साथ हिल्म लाना पड़ेगा, हिल्म, आजी, इनकी सारी ह्यूमिलिटी। नफ्स को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, सारे चौधरी होते हैं। ये तन्हाइयां तेरे लिए जरूरी हैं, रेवड़ से हट के जो चलेगा। वक्ती तन्हाई तो तेरी होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द वर्ल्ड विल बी स्टैंडिंग विद यू, एक्सेप्ट फॉर दैट हर्ट जो आपके साथ नहीं था। घबरा नहीं, मैं कह रहा हूं घबरा ही नहीं। The hardest walk you can make is the walk you make alone, and
the toughest climb always gets you the best destination. अकेला होता है इंसान नजरियात को वो दवाम बख्शने के लिए, नजरियात को, पोटेंशियल को वो मकाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, वक्त की नजाकतों को वो रफाकतें बख्शने के लिए तन्हाई चाहिए होती है बेटा, तन्हाई। उन तन्हाइयों के अंदर इमाम पैदा होता है, उन तन्हाइयों में वो क़यादत जन्म लेती है। अकेला होता है वो एक इंसान जिस दिन वो ये कहता है कि मैं आजाद करूंगा अपने आप को, मैं सच बोलूंगा अपने आप से, मैं झूठ के सहारे से रिश्ते की बुनियाद नहीं रखूंगा, ना अल्लाह के साथ बोलूंगा झूठ, ना कौम के साथ झूठ बोलूंगा। सच्चाई वक्ती डिप्रेशन ला सकती है, लेकिन ऑन द लॉन्गर रन जीत तेरी होगी बेटा, जीत भी तेरी होगी, मकान भी तेरा होगा, जमाना भी तेरा होगा और मकान भी तेरा होगा। याद रखिए, ये सुकून है कि मैंने चंद टकों पे अपने आप को बेच नहीं डाला, मैंने एवरेज पे सेटल नहीं किया, मैंने लाइफ लेस ऑर्डिनरी से लाइफ मच एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुजारी, मैंने वो रूट लिया जिस पे कलेजा और गुर्दा नहीं था लोगों का जाने के लिए, मैंने वो सारे झूठ से आजाद कराया जो बचपन से मुझे डाला गया था। तो क्या हुआ अगर कुछ सफे स्याह नहीं हुए, क्या हुआ कुछ तारीखें मसक नहीं हुई, क्या हुआ कुछ बचपने कुर्बान नहीं हुए, क्या हुआ कुछ ज्यादतियों को वजूद दे दिया गया। अगर ये ना होती तो कैसे उस मकाम को तू एंजॉय करेगा, कैसे तारीख और माजी को याद करेगा अपनी। तो होने दे ये जो हुआ है, सुकून रख उस यकीन के साथ। अगर जाहिर के लिहाज से तू कमजोर भी है, मगर अगर तेरा कलेजा और तेरा सीना और तेरा जिगर मजबूत है बेटा, दुनिया की कोई चीज तेरा माल दौलत धन तो लेके जा सकती है, मगर कलेजे से तेरा सुकून कैसे चोरी कर सकता है कोई। हाउ कैन द वर्ल्ड स्टील द वैल्यूज फ्रॉम योर हार्ट। दुनिया तेरे नजरियात को कैसे कत्ल कर सकते हैं बेटा, तू मर के भी अमर हो जाएगा। इसलिए खोलो सूरे बुरूज, उठाओ असहाबुल उखदूद का किस्सा। एक बच्चे ने एक बादशाह के सामने एक हक की बात कबूल की, उसने 3 अटेम्प्ट्स की उसको मर्डर करने की, मगर वो हर अटेम्प्ट में बच जाता सिर्फ एक दुआ पढ़ के, अल्लाह मगफिरनी बिमा शिअता, ओ गॉड बी इनफ फॉर मी, बी सफिशिएंट इनफ फॉर मी अगेंस्ट द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन दैट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मी इन फॉर्म ऑफ स्टॉर्म्स, इन फॉर्म्स ऑफ माउंटेन्स। जो पहाड़ और तूफान दुनिया ने मेरे आगे खड़े कर दिए मेरे मालिक, तू मुझे उसके सामने तू काफी हो जा। वो बच्चा सरवाइव कर जाता है। लेकिन जब बादशाह उसे कहता है, वो बादशाह को खुद कहता है कि मैं तुझे बताता हूं मुझे कैसे मारना है। उसने कहा तूने मुझे मारना है, तूने अल्लाह का नाम लेके मारना है। उसने अल्लाह का नाम लिया, पूरी कौम मुसलमान हो गई, पूरी कौम मुसलमान हुई। बादशाह वहीं पर हिल गया कि ये हुआ क्या है। तो उसके बाद उसने पूरी कौम जला दी। उठाओ सूरे बुरूज, पूरी कौम जला दी। और कुरान में आता है वो उस खंदकों के अंदर जहां मुसलमान जलाए जा रहे थे, जहां पे इंसानियत जलाई जा रही थी, वो बैठ के शहूद देख रहे थे, तो अल्लाह ने उस लम्हे के ऊपर कुरान में कहा है ज़ालिकल फौजुल कबीर, दिस इज नॉट इंडीड अ सक्सेस, इट इज इंडीड अ ग्रेट सक्सेस। क्योंकि उनकी वैल्यूज जी गई, चाहे जिस्म जल गया उनका। वैसे अगर तेरी वैल्यूज जीत गई है बेटा, अगर तेरा नजरिया जीत गया है, तो ये जाहिर की बात ना सोच, ये जाहिर के दर्द को मत सोच, ये जाहिर की तकलीफ का कोई परेशानी ना कर बेटा। ये तो तारीख है इस सफर की, ये तो तारीख है इस मान का, इस सम्मान का, ये तारीख है इस दर्द की बेटा, कि वो जलाया जाता है, काटा जाता है, तोड़ा जाता है और बखेर दिया जाता है। कितने इसमें खत्म और अदम हो जाते हैं जाहिरी लिहाज से। लेकिन अगर तेरा जाहिरी वजूद, इफ योर फिजिकल आउटवर्ड डिमेंशन ऑफ योर लाइफ गोज इनटू नॉन एग्जिस्टेंस, अल्लाह तुझे फिर भी कामयाब करता है, क्योंकि तेरी वैल्यू जिंदा है, तेरी सोच जिंदा रह गई, तेरी लेगेसी इस दुनिया में जिंदा रहेगी बेटा। अपने वजूद को लोगों की सोच से बड़ा कर, अपने वजूद को अपने आप से भी बड़ा कर दे। क्या ले लेंगे ये तुझसे तेरा। एज इमाम इब्न तैमिया यूज्ड टू से रहमहुल्लाह, इफ यू विल किल मी आई विल बी अ मार्टर, इफ यू विल एक्साइल मी आई विल हैव द प्रिविलेज ऑफ डूइंग हिजरा इन द वे ऑफ अल्लाह, एंड इफ यू इम्प्रिजन मी आई विल हैव द प्राइवेसी ऑफ रिमेंबरिंग माय गॉड। यू कैन डू नथिंग अगेंस्ट मी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बना अपने आप को ऐसा बेटा जिसके मन और तन आजाद होते हैं, जिसके मन और तन किसी के गुलाम नहीं होते, मुतकब्बिर नहीं होते, हासिद नहीं होते और आजिज होते हैं और सच के साथ जुड़े होते हैं। ये जेलें और सलाखें भी तेरा क्या बिगाड़ लेंगी बच्चे। इसलिए अगर कहीं शिकस्त हो जाए, दिल टूट जाए, किसी की बात चुप जाए, किसी के अल्फाज चीर दे सीना, वो सीना जो तलवार से ज्यादा घाव रखते हैं, ये अल्फाज जो होते हैं लोग। और याद रखिए इस सफर की शान है, इस सफर का एक मान है और एक सफर का एक भरम है कि इसके अंदर तीरों के रुख तेरी तरफ होंगे, तेरे खिलाफ भी होंगे, तेरी कमर पे होंगे और तेरी छातियों पे होंगे। जिंदगी की शान ये है बेटा
अगर तू अपनी नफ्स की गुलामी से, इस नफ्स के दर्द से, माजी के गम से, उस साइकोपैथी से, उन तमस्खुर से, उन संजीदगियों में जिस दिन तू कदम रखेगा कुछ बनने की, तो देखी ये दुनिया के तीर तेरी तरफ होंगे, क्योंकि तेरा वजूद एक दलील होगा जो उन्हें याद दिलाता होगा कि तू कर सकता था, तू रुक सकता था, तू थम सकता था, तू बढ़ सकता था, तू उस इर्तिफा को, उस महराज को पा सकता था, मगर तू ना कर सका। तेरी तरक्की उन्हें अपनी उस बुज़दिली, उन्हें अपनी उस डरपोकी और उस कायरता की याद दिलाती है, इसलिए तो वो तुझ पे हमले करते हैं। तो क्या हुआ माजी में अगर कुछ छिन गया, वो अगर मिल जाता तो आज तू यहाँ ना होता, वो मिल जाता तो आज हम यहाँ ना होते, वो इश्क कामिल हो जाते तो ये हुस्न कैसे जमाल तक पहुंच सकता था। वो इश्क वो नहीं सही था तेरे लिए। आजाद कर अपने आप को उन गमों से, आजाद कर और 3 लफ्ज कह के कदम आगे बढ़ा, दिल में बहुत ठहराव और सुकून होगा। कद्दर अल्लाह माशा, अल्लाह ने जो आसमानों पे लिखा है वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं गिले नहीं करता, यहाँ पर गिले ना कर, गम ना कर। इंसान के कलेजे को कभी सुकून मुयस्सर नहीं हो सकता जितनी वो फैंटेसीज में रहेगा, जितने वो फनेटिसिज्म में रहेगा। हमारा दीन और हमारा शियार और हमारा शऊर, हमारी तरबियत, हमारी कौम के बच्चों को हम फैंटेसाइज वर्जन पे बिल्कुल माइनस नहीं करना चाहते। फैंटेसी अच्छी है अगर वो उम्मीद खड़ी करे इंसान, फैंटेसी अच्छी है अगर वो प्रोडक्टिविटी उठाए उसके अंदर, फैंटेसी अच्छी है अगर वो उसके अंदर वो होपलेसनेस खत्म करे। वो अफसाने अच्छे हैं कि उन मकामों में पहुंच के इंशाअल्लाह ताला दुनिया मेरे काम से फायदा उठाएगी, ये फैंटेसी अच्छी है। अपनी जिंदगी के अंदर ये अफसाने रखो कि मैं एक तकरीर बनूंगा, मैं एक कलम बनूंगा, मैं एक सांस बनूंगा, एक एहसास बनूंगा लोगों का, ये फैंटेसी। मगर हकीकत पर रखना उसको, इसमें मुआवजे होंगे। तेरी कहानी के अंदर जमीन आसमान हिलाएगा अल्लाह। मैं तुझे कहता हूं बेटा, परेशान न हुई, घबराई नहीं। तेरी कहानी के अंदर पे के 3 नुक्ते लोग पूछते हैं क्या ये पे और से, पे के नीचे 3 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते अल्लाह करेगा। टिका रहे, खड़ा रहे, मैं तुझे कह रहा हूं घबराई नहीं। वहां पर इंशाअल्लाह ये जमीन आसमान तेरे लिए खजाने खोल देंगे। मैं यहाँ महज जज्बाती तकरीरें नहीं कर रहा, अफसानों से बाहर निकल। वो खुशियां जो तुझे दिखाई जा रही हैं वो फॉल्सिफाइड हैं, वो गम जो तुझे दिखाए जा रहे हैं वो भी फॉल्सिफाइड है। मंजे हुए फील्ड के लोगों से जाके सीख जिंदगी क्या होती है बेटा। तुम्हारा पोटेंशियल दावत दे रहा है तुम्हें, वक्त तुम्हें दावत दे रहा है, हालात तुम्हें दावत दे रहे हैं, तेरे अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट तुझे दावत दे रही है, तेरे अंदर का सेल्फ स्टीम तुझे दावत दे रहा है, दुनिया तुझे दावत दे रही है कि अपने आप को पहचान और अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचान, अपनी हैयत को पहचान, अपने मकाम को पहचान, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो उस गुलामी से आजाद। एक साइकोलॉजी ऊपर वाले स्ट्रैंड में बहुत ज्यादा मिलेगी, दूसरी साइकोलॉजी बनी इसराइल, बिलीव ही नहीं करना, ऑलवेज सेकंड पोजीशन, ऑलवेज अ साइड किक। हमें उस लीडरशिप के रोल को अपनाना ही नहीं है कभी, अगरचे दावतें खड़ी हुई है दुनिया जहां की कि यू हैव टू कैरी दिस विजन। वो कहीं अपने घर में दब के होंगे, कहीं अपने हस्बैंड से दब के होंगी वो बेचारियां, कहीं हस्बैंड भी दबे हुए होंगे, कहीं दोस्तों के हाथों दबा हुआ होगा, और हर लिहाज से वो डिमीड हुआ हुआ है। और वक्त का तकाजा कह रहा है कि कायनात की उस एक्सीलेंस का पोटेंशियल तुझे दावत दे रहा है कि तू कर सकता है। वो तब भी उस सच को कबूल नहीं करेगा और उस शक में ही रहेगा तो सुकून नहीं हासिल हो सकता। एक बहुत बड़ी कौम ने दुनिया को रिजेक्ट नहीं किया, एक बहुत बड़ी कौम ने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया। तो ठीक है, कुएं में बैठ के शेरों की बात करते हुए अच्छा तो लगेगा, लेकिन क्या ही बात होगी कि कुएं के अंदर बैठ के जब मेंढक आपस में डिस्कस कर रहे होंगे काश, अगर और मगर। तू कर सकता था बेटा, लेकिन यू डिडंट हैव दैट सर्टेनिटी, वो यकीन जो बुनियादी फ्यूल था उस पूरे किले को चढ़ने के लिए, फिर उससे निकलने के लिए, फिर एक नई दुनिया में, नए दोस्तों में, नई ऑब्स्ट्रक्शन में, नए दुश्मनों के अंदर, नए मकामों के अंदर उस हिजरत को करने के लिए तेरे नफ्स ने वो शुजात ना अपनाई, वो बहादुरी ना अपनाई और लोग गुलामी में रह गए। तो वो ये कन्वीनियंस तो है मगर फॉल्सिफाइड कन्वीनियंस, ये वो झूठा सुकून है जो अपने आप को पिलाना तो आसान था कि मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये इसलिए नहीं कर सका क्योंकि 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 यही उनकी जिंदगी रह गई। आपको एक बड़ी वैरायटी मिलेगी लोगों की जब उनसे विजन्स की बात करो, ख्वाब की बात करो, मकाम की बात करो, कलेजे की बात करो, जिगर की बात करो, सीने में पैदा होने वाले इस लोहे की बात करो। वो शक्ल ही नहीं देखना चाहते, वो बात ही नहीं सुनना चाहते। क्यों?
क्योंकि 30 साल लगे गला घोंटने के अंदर, 20 साल लगे अपने अंदर की मासूम जुर्रतमंद आवाज को गला घोंटने के अंदर, इसने आके 1 मिनट के अंदर सारे पुराने पाप और गम याद दिला दिए। ये लोग कभी नहीं मिलेंगे, ये लोग कभी नहीं मिलेंगे आपको कि ये हक को कबूल करें। तो एक लिहाज से वो फॉल्सिफाइड वर्जन बेसकूनी का हमेशा रहेगा। हाँ, झूठ को सकून कहना हो तो इट्स फाइन। जिंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है बेटा? ए भी तू मिन्हा जमिया, अल्लाह ने हमें अपने पास से दूर कर दिया। ये दुनिया हमारा घर नहीं थी। ये दुनिया में हम हैं, या मकाम बनाने हैं, या एक्चुअलाइजेशंस करनी है, या करियर परसू करने हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा तो कलेजे का गम यही है कि वी कांट सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास इंटेलेक्ट के हाईएस्ट फॉर्म पे जब वो थे, साइकोलॉजी के सबसे हाईएस्ट फॉर्म पे जब वो थे, एक्चुअलाइजेशन के सबसे मैग्नीफाइड वर्जन पे जब वो थे, तब उन्होंने कहा अल्लाह आई वांट टू सी यू। तो अल्लाह ने कहा लन तरा, तू देख नहीं सकता। इससे बड़ा क्या गम होगा तेरा कि तुझे जिसने बनाया, तू कितनी मशीनें बनाता है और अपना ब्रांड लगाता है उसमें, तू कितने रिंग, पिस्टन, लाइनर, केम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, कंप्रेशन रेशियोज और फिर उसको पोल वाइंडिंग से जोड़ के फिर अल्टरनेटर बना के और फिर टरबाइन से लगा के तू कितनी मशीनें बनाता है, कितने मेन बेयरिंग्स बनाता है, बिगिन बेयरिंग्स बनाता है, 0.25 की सेटिंग करता है। सारे इंजीनियर्स बैठे और फिर मुंह अपना ठप्पा लगा जिसके ऊपर, जिस मशीन के ऊपर अल्लाह का नाम लगा हुआ है, इसे अल्लाह ने बनाया। तू अपने मेकर से जुड़े बगैर कैसे उस इत्मीनान को पा सकता है? इंसान लिमिटलेस होता है अपनी ज़िंदगी में, लिमिटलेस। वो खुद डिफाइन करता है अपने आप को, और आज अगर वो किसी जगह पर है, वो उसकी अपनी डेफिनेशन। एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू एंड नथिंग इज अगेंस्ट यू, इट्स अकॉर्डिंग टू द वे यू परसीव अबाउट लाइफ। आप कैसे देखते हैं जिंदगी? तो कुछ बड़ा काम करना है ना अगर जिंदगी के अंदर, बड़ा काम, इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग लार्जर देन व्हाट यू आर राइट नाउ, जहां से आप आए हैं, जिन बरादरियों से, जिन जातों से, जिन इलाकों से, वो आपको अभी डिफाइन कर रही होंगी, जिसके तहत आपके ख्वाब बने हुए होंगे, और आप उन ख्वाबों के अंदर ही कुछ 5-10% की बहादुरी दिखा के कुछ बन जाएंगे, लेकिन यू आर फार मोर ग्रेटर देन दैट। इंसान को अपने कुएं से निकलने के लिए ना, मेंढक को शेर बनने के लिए ना, कुएं से निकलने के लिए 2 बड़े इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिससे वो बहुत बड़ी चीज बन सकता है। जब इंसान सोचना शुरू करता है ना कि वो कौन है, कहाँ था, कहाँ पहुंच सकता था, कितनी अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कर सकता था, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फिर अपने हॉल से निकल के वो क्या नहीं बन सकता था, तो जो सबसे पहली डीमोटिवेटिंग आवाज आएगी ना आपको, वो आपका अपना नफ्स होगा जो कहेगा यू कैन डू इट। और फिर ये एक्सपैंड होते होते जब इंसान के ख्वाब उसकी जुबान पर आते हैं, तो ये दुनिया आपको ऐसी हसीन मिलेगी ना, नेसेयर्स टेलिंग यू कैन डू इट, यू नॉट मेंट फॉर दिस, तू नहीं कर सकता भाई, यू डोंट हैव दैट गट, यू डोंट हैव दैट हेड एंड यू डोंट हैव दैट क्लिक टू पुल इट ऑफ। तो 3-4 किस्म के डिवाइड्स मिलेंगे आपको। एक वो है जो हमेशा साहिल पे बैठ के दलील दे रहे होते हैं अपनी कायरी की, अपनी बुजदली की और अपनी उस गुर्बत की और फकीरी की। आपको एक बहुत बड़ी कौम मिलेगी जिनके पास दलाइल होते हैं कि मैं साहिल पर इसलिए मर गया, इसी पे रह गया क्योंकि ये वजूहात थी। कुछ आपको मिलेंगे जो पैर तो रख देते हैं जिंदगी के उस फ्लो के अंदर, मगर थोड़ा सा समंदर अपना आप हिलाता है, फिर भगोड़े भाग के वापस आ जाते हैं। और एक वो होती है जो आगे तो जाती है समंदरों में, अपनी किश्ती लेके जाती है तूफानों में अपनी मंजिलों की उन पीक्स तक पहुंचने के लिए, मगर उनके यहाँ 2 बड़ी कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो कुछ बन नहीं सकते, और इंसान अपना उस नेचुरल ओरिजिनल फिनोमिनन पर्सोना जिसे हम कहते हैं, उससे कोसों मील दूर हो जाता है। इसलिए जब वो अंदर से घुटी हुई आवाज से कभी आ भी रही होती है ना कि यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, इंसान में इतना दिल, गुर्दा, जिगर ही नहीं होता कि वो उसे मुंह दे सके, क्योंकि ऊपर बुजदली, कायरी, लॉस्ट होने के इतने अंबार होते हैं। दैट्स वेरी नेचुरल एंड इट्स फन। जिस आदमी ने जिंदगी के अंदर रास्ता नहीं खोया, वो रास्ते की अहमियत समझाएगा कैसे किसी? जो चला ही हमेशा सीधे रास्ते पर, वो भी पावरफुल है, मगर जिसने बुरे रास्ते नहीं देखे वो कैसे सीधे रास्ते बयान करेगा? वो सीधे रास्ते पर ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट कैसे कराएगा किसी को? दोनों की अपनी क्लास है शरीयत के अंदर। जो सिरात मुस्तकीम पर है उसकी भी क्लास है, और जो सिरातुल जहीम से सिरात मुस्तकीम है उसकी भी क्लास, मगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फियर मैनेजमेंट बहुत बड़ा होगा। पॉइंट इज, बहुत से लोग अपने असल आप से मिल नहीं पाते क्योंकि डर, खौफ, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग एक बहुत बड़ा भूत है हमारी लाइफ, लोग, पीपल। अगर कोई इससे आजाद होकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की कोशिश करेगा तो यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स बेटा, और तुम अपने उस चीज को ज्यादा जितना वॉल्यूम दोगे
लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि गुलामी हर किसी को पसंद है, चैलेंज कोई प्रेफर नहीं करता। बड़ा आदमी, बड़ा शख्स बेटा ना वक्त ज़ाया करता है, ना रिसोर्स ज़ाया करता है, ना जिस्म ज़ाया करता है और ना रूह ज़ाया करता है। खुदा के साथ भी ताल्लुक पूरा कंप्लीट रखता है, वक्त के साथ भी ताल्लुक पूरा रखता है। अपनी रिसोर्सेज जो उसको मिली हैं माँ बाप की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, स्कूल की शक्ल में, आपको ये मिला है, शायद कुछ लोगों के पास ये भी ना हो कतर के अंदर, वो कभी भी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैक्सिमम यूटिलाइज करता है। लम्मा सब्र, सेल्फ कंट्रोल इन नॉट वेस्टिंग द प्लेनेट, सेल्फ कंट्रोल इन नॉट वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, सेल्फ कंट्रोल इन नॉट वेस्टिंग द टैलेंट गॉड हैज गिवन यू, सेल्फ कंट्रोल इन नॉट वेस्टिंग द टाइम यू हैव राइट नाउ, बिकॉज आगे गेम बदल जाएगा बेटा। फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ द गेम वुड बी एंटायरली डिफरेंट एंड लाइफ इज अ गेम। डोंट प्ले इट एज अ गेम, प्ले इट एज अ प्रोफेशनल। दूसरी शर्त जो अल्लाह कहता है कि जब इंसान सब्र करने पे आएगा, अपने आप से लड़ने पे जाएगा और लोगों की तकलीफों पे सब्र करना होगा, जब वो ख्वाबों की बात करेगा, ड्रीम्स की बात करेगा, विजन्स की बात करेगा, तो दूसरी तोप जो उसे चाहिए वो है वखैन उबियाती नहीं, सर्टेनिटी, यकीन, कन्विक्शन कि मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे पहुंचना है। मैं कन्विंस करूंगा अल्लाह को कि वो बदले आसमानों के ऊपर तकदीर, मैं कन्विंस करूंगा उसको। हदीस में आता है अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक बड़ा दिल ला, मैं कायनात बड़ी कर दूंगा तेरे। कंजूस आएगा, कंजूसों वाले मामले ले ले मुझसे। हम दुआएं भी मांगते हैं, कंजूसों वाली दुआएं हमारी। मांग बड़ी चीज मांग बेटा, पे के 3 नुक्तों को सिर के 3 नुक्ते वो बनाएगा, ये तेरा काम नहीं है, मगर यू हैव टू वर्क लाइक मूसा। अल्लाह ने 12 रस्ते खोले, 12 मुंह खोले समंदर के, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा लाठी फेंक अपनी, थ्रो द स्टाफ मूसा, ताकि दुनिया को ये फील ना हो कि सिर्फ दुआएं होती हैं और असबाब और फिजिकल वर्कआउट नाम की कोई चीज नहीं होती। ऊंट बांध फिर तवक्कुल कर। सो देयर इज दैट यू हैव टू बी सर्टेन कि सफर लंबा है। जीत का अगर कोई मुझसे एक लाइन में पूछे ना जीत क्या है, जीत इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लंबी वॉक है, इट्स अ लॉन्ग वॉक ऑफ लाइफ। द मोमेंट यू डिसाइड टू बी अ लीडर इन एनी फील्ड, इंजीनियर, डॉक्टर, यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन एज वेल, द मोमेंट, ये 2 चीजें होती हैं जो किसी भी इंसान को, किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को एक्चुअलाइज करती हैं। एक तो कितनी हिट ले सकता है अपनी लाइफ के, क्योंकि हिट बहुत आएगी सर, ओ यू विल फाइंड थिंग्स यू वोंट इमेजिन विल हैपन। इसलिए हम अपने बच्चों को डराना नहीं चाहते, सफर भी बड़ा मजे का है। सो इट्स अ गेम ऑफ सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, लॉन्ग गेम, लॉन्ग सबर, स्टे देयर। अक्सर लोग गेम में सही जा रहे होते हैं अपनी लाइफ में, मगर सेल्फ कंट्रोल छोड़ता है और अभी आगे कुछ होता है, यू कांट इमेजिन, इतना बड़ा मौजा आगे वेट कर रहा होता है, वो भाग जाता है गेम से। ही लीव्स द वॉक ऑफ लाइफ, द वॉक ऑफ सक्सेस। और अक्सर लोग सही जा रहे होते हैं और लगे हुए 10-10 सालों में, मगर कन्विक्शन और सर्टेनिटी, यकीन नाम की चीज ही नहीं। ऐसे मरे हुए दिल से जिंदगी गुजार रहे हैं कि आप देख लें चीजें बदल ही नहीं रही जिंदगी के अंदर। डिटर्मिनेशन एंड सिंसेरिटी, यकीन, द 2 C's, रिमेंबर द 2 C's ऑफ लाइफ, कंसिस्टेंसी एंड सर्टेनिटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है, तो आपके बहुत से जवाब हैं इस अच्छे काम के ऊपर। कभी कुछ काम ने कुछ, एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, अदवामहु व इन कल्ला, कम कर ले मगर कंसिस्टेंटली इस्तिक़लाल के साथ करता रहे। छोटा काम कर ले मगर लगातार करता रहे। इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट इन पीपल, इन योरसेल्फ, कि मैं मौजूद हूं, मैं खड़ा हूं यहाँ पर। बड़ी जंप्स ना लें, छोटा मगर कंसिस्टेंट, एंड स्टे इन द गेम, कीप डाइवर्सिफाइंग, कीप फाइंडिंग द मेट्स विद, अपने अंदर हुदूद डिफाइन ना करें। जितने भी वसवसे आ रहे हैं इनवाइट करें उसको फेस करने के लिए। दैट विल ब्रिंग इन, आपको मास्टर्स चाहिए, मेंटर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, मगर बेटा जिंदगी में कभी नहीं घबराना, कभी हाथ नहीं उठाना, कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ कायनात के अंदर अल्लाह बदलता है तेरे पोटेंशियल और जिगर और गुर्दे को बड़ा करने के लिए। अल्लाह से मसल इंसान जरूर तकलीफ हम इसलिए नहीं देते क्योंकि मजा लगा हुआ है धर्म में, कि मजा आता है हम लोगों को तकलीफ, नहीं, तकलीफ हम इसलिए देते हैं ताकि उसकी स्पिरिचुअलिटी ऊपर हो। दाना दुआ मुखल इबादत, हदीस में आता है दुआ असल इबादत का एसेंस है। वो इंसान को ह्यूमिलिटी सिखाती है कि मैं हूं, अल्लाह अल्लाह है। तो जब इंसान अपनी वॉक ऑफ लाइफ में अननेचुरल होगा, वापस लाने के लिए कि वो अपनी सही सिमत के ऊपर जाके इमाम बने, अल्लाह ने थोड़े टिच टूच करने होते हैं। तो अगर आज तेरे पास पैसा नहीं है, नाम नहीं है, प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, सहारे नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, रिकग्निशन नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, मुबारक हो बेटा, लीडर पैदा ही इन वादियों के अंदर होता है। लीडर इन तन्हाइयों में पैदा होता है जब कोई नहीं मानता उसे, कोई गले नहीं लगाता, कोई कोल्ड शोल्डर्स नहीं होते उसके लिए। मगर लीडर मरूब भी नहीं होता और मगलूब भी नहीं होता। अकेला घूमता है शेर बड़े अरसे जंगल के अंदर। शेर की शान ये होती है, वो भेड़ियों की तरह और कुत्तों की तरह पैक्स में नहीं घूमता, अकेला घूमता है वो। मगर ये तन्हाई, ये इनफरादियत अच्छी भी नहीं होती। काफी अरसा शेर एक पैक के साथ ही पलता है, फिर एंड में अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। तो कुछ अरसा बेटा तुझे इस दुनिया के सिस्टम के साथ ही जीना है, कुछ अरसा इन लॉज को मानना है, तूने अपनी गर्दन, अपने दिल को झुका के रखना है बहुत सी चीजों के आगे। जब तू उस फील्ड के अंदर एक नास कॉन्टेम्पलेशन के साथ बैठा होगा, फिर अपने मुंह से बात करते हुए अच्छा लगेगा, फिर लोग भी मानेंगे
बताने के, मगर अपना मुंह, अपनी आंख और अपनी कान गलत चीज में मत वेस्ट कर बेटा। यही जो बराबर में बैठा है यही तेरे से आगे निकल जाएगा, बिकॉज ही स्पेंडिंग टाइम, ही इज डेवलपिंग हिमसेल्फ। आज एक मस्ती, दिस इज व्हाट आई टेल द मुस्लिम किड्स, दिस इज व्हाट माय एड्रेस इज फॉर द पाकिस्तानी पीपल। एक मिनट जो आज गलत लगा रहा है ना, एक मिनट जो बच्चे तूने जाया किया ना जिंदगी, वो कितना बड़ा तुझे नुकसान देगा। मैं एक एग्जांपल देके खत्म करता हूं। अगर आपने गोल्फ को कभी स्टडी किया ना, गोल्फ की बॉल होती है इतनी सी, और गोल्फ की बॉल के अंदर अगर आप देखें वो जो शॉट मारता है ना, तो माइल्स का डिफरेंस होता है दो प्लेयर्स के शॉट के, मगर जो स्टार्टिंग डिफरेंस होता है ना, इट्स अ 1 इंच डिफरेंस ऑफ द क्लब। 1 इंच के डिफरेंस होता है सिर्फ शुरू के अंदर गोल्फ बॉल के। इफ यू आर हिटिंग इट लाइक दिस, वो 1 इंच या आधे इंच का डिफरेंस होता है शुरू में, जो आगे जाके माइल्स यार्ड का डिफरेंस होता है। एक गलत दोस्ती, एक गलत मूव, एक गलत बात कान के अंदर, एक गलत सहारा, एक गलत यारी, एक गलत ऑप्शन, एक गलत व्हाट्सएप, एक गलत एंड्रॉइड भी अगर आपने सेलेक्ट किया ना, वो कितना बड़ा इंपैक्ट आपकी लाइफ में आगे लेके आएगा। यू डोंट नो दैट। एक मिनट बेटा, एक मिनट कीमती है। लंबी गेम, लंबा स्ट्रगल, लंबा सबर, लॉन्ग पेशेंस, लॉन्ग सर्टेनिटी। लंबे सफर में इंसान का यकीन टूटता है, सबर टूटता है। इफ यू होल्ड बैक टू इट, जीत तुम्हारी है बेटा। यू विल बी द विनर। अगला कंपेटिटर छोड़ देगा मार्केट, गेम में से बाहर चला जाएगा, ही लीव इट। एग्जॉस्ट करो उसको अपने सबर के साथ, और एंड में अगर कहीं मुकाबला भी होता है तो उसमें इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो आपको लड़ने का तरीका भी जो होता है वो पागलों की तरह नहीं होता कि जाके मुसीबत में मुंह ही दे देते हैं। देयर इज द पॉलिटिक्स ऑफ लाइफ, देयर इज द पॉलिटिक्स इवन शरिया टेल्स अस, किस तरीके से एंगेज होते हैं लाइफ में अपने मसाइल के साथ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी एक मुश्किल सफर है। When it comes to knowing who you are and what you want to do in this world, from the physical aspect and from the spiritual aspect, दोनों dimensions के ऊपर, according to my education, little I have from the Islamic perspective, दोनों में बहुत जबरदस्त उसूल इस्लाम देता है कि इंसान उस कमाल तक कैसे पहुंचे जहां उसे चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। Because when it comes to the highest level of faith, अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ स्पिरिचुअल विजन भी लेके चलें, कॉर्पोरेट और प्रोफेशनलिज्म पे मैं इसके बाद आ जाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो टारगेट दिया है ना, वो ये है अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका, कि तू इस दुनिया में मेरे साथ ऐसे चल, इतना एक्चुअलाइज हो कि तुझे अल्लाह दिखता हो। एंड इफ यू डोंट सी हिम फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका, तो कम से कम अपने परसेप्शनल लेवल्स पे, अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, अपनी ग्रोथ और अपने ह्यूमन साइकोलॉजिकल नरिशमेंट के उस लेवल पे आ जा कि तुझे ऐसा महसूस होता हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। सो इट्स नॉट इजी, देयर आर प्रोसीजर्स, उसूल एंड ज़वाबित एंड कवायद वहां तक पहुंचने के लिए। इस्लाम में भी इंसान की अंडरस्टैंडिंग के, उसकी कॉन्शियसनेस के, उसके परसेप्शन के, उसकी सोच के, उसकी थॉट के, उसके इंटेलेक्ट के 3 लेवल्स हैं। कहीं 5 आते हैं, कहीं 3 आते हैं। एक इस्लाम है, दूसरा ईमान है, तीसरा एहसान है। इवन व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म एज वेल, अपने किसी स्किल के अंदर या अपने किसी रोल के अंदर एक्चुअलाइज होके उस लेवल तक पहुंचना, where without seeing the maqsood and the matloob, the manzil and the destiny, you see it with the eyes of your heart. It's not an easy job. It's a tough walk. It's a hard walk of life. बहुत मुश्किल सफर है जिंदगी के अंदर कुछ बनना। और मेरी तो छोटी सी जिंदगी की तहकीक ये बताती है कि किसी मकाम तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, उस मकाम को रिटेन करना और उसके बाद दूसरे मकाम तक पहुंचना, तो वो असल लड़ाई वो है। That's the real fight of life. क्योंकि the first fight and the first war you have to be something in this world, उसके पीछे बहुत से साइकोपैथिक एलिमेंट भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सी इरैशनल मोटिवेशन भी काम कर रही होती है, बहुत से गुमूम हुमूम कर्ब और बहुत से गम काम कर रहे होते हैं। एंड बाय हुक और बाय क्रुक वी डू फाइंड समथिंग इन लाइफ। हम पहुंच जाते हैं कहीं, मगर प्रॉब्लम पहुंचना नहीं है, प्रॉब्लम रिटेन करना है, प्रॉब्लम ग्रो करना है। प्रॉब्लम इज टू मैनेज योरसेल्फ टू गो टू द नेक्स्ट स्टेशन एंड देन गो टू द नेक्स्ट स्टेशन। इनफैक्ट कुरान की एक आयत से मुझे पता चला कि ये जो मकसद होता है ना इंसान का, विजन, ये कभी फौत नहीं हो सकता। बंदा फौत हो जाता है, विजन खत्म नहीं होता। वो विजन जो खत्म हो जाए वो विजन ही नहीं था। एंड यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट विजन फिजिकली एंड फंक्शनली, दैट्स आल्सो अ रॉन्ग डेफिनेशन एज वेल। लोग आगे पीछे हो जाते हैं, विजन कंटिन्यू करता रहता है। एंड दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्रोसीजर्स कि आपको बेंच और सीट छोड़नी पड़ती है। एंड यू हैव टू हैंड, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्चुअलाइजिंग योर विजन, दैट यू हैव टू गिव इट टू समवन एल्स एज वेल। बट अल्लाह सेज वाअबुद रब्बका, सूरह हिज्र, वाअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। मतलब इबादत एक प्रोसीजर है और अल्लाह मकसूद और मतलूब और विजन है। अगर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ जरा शरीयत के साथ, आप इसको कॉर्पोरेट में अप्लाई कर लीजिएगा, वरना मैं खुद भी कर दूंगा। इफ गॉड इज द विजन,
huwa al-maqsood al-matlub al-ma'bud, and ibadat is the procedure, and Allah says wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin. उस वक्त तक तूने अपने आप को उन प्रोसीजर्स, उन प्रीरेक्विजिट्स के अप्लाई करते रहना है जब तक कि तुझे मौत नहीं आ जाती। तो जिंदगी के अंदर इमामत हो, क़यादत हो, लीडरशिप हो, किसी एक रोल में हो या बहुत ज्यादा रोल्स में हो, ये कभी खत्म नहीं होता। इट नेवर एंड्स अप, इन फैक्ट इट नेवर फिनिशेस। एंड द शैतान and our own nafs and our own demented perception is always trying to tell us to let go of the ball, let it go, it's over, you're done. In fact, the grace of man's struggle starts when he gets grey. That's the beauty of Islam. असल लड़ाई तो शुरू ही जब होती है जब you get grey haired, because that's when you have the power of wisdom. You don't use much of your functional parts, but you use your brain a lot. आपका दिमाग बहुत चलता है उस टाइम। But जिंदगी के रोल्स के अंदर, as a father, as a corporate head, as an entrepreneur, as a political leader, as a friend, as a teacher, as an ustaz, या even right now कोई शख्स अगर ऐसे स्टेज पर है कि वो कुछ करना चाहता है but he doesn't have that, that hit is not there in his heart. 3-4 ही स्टेजेस होंगे according to my knowledge of the Sharia. या तो वो फैसला करना चाह रहा होगा and he is not able to pull himself to lead anything he wants to do, or he is doing it and he is getting beaten badly. अच्छे खासे तरीके से उसे मार पड़ रही होगी। कुछ महाज हार रहा होगा, कुछ महाज पे फतह होगी, कुछ महाज रिटेन कर रहा होगा, और कुछ डामाडोल तरीके से ही चल रही होगी गाड़ी, और कुछ पहुंच गए होंगे मगर इतना रिसोर्स जाया किया होगा, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मटेरियल, कि ना आगे जाने की हिम्मत होगी और ना ही रिसोर्स होगा आगे बढ़ने का, या अपने जिस्म ने साथ छोड़ दिया होगा या लोगों ने साथ छोड़ दिया होगा, या मटेरियल इतना वेस्ट कर दिया होगा कि आगे के स्टेज पे जाने के लिए द आर्ट ऑफ वॉर जिसे हम कहते हैं, दैट हैज फिनिश्ड फॉर यू नॉट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेशन, टू फर्दर क्लेम योर एक्चुअलाइजेशन, टू सी योर लिमिट एंड चेक हाउ फार यू कैन गो विद इल्म एंड अमल एंड नॉलेज एंड परसेप्शन। तो ये 2-3 स्टेजेस ही होंगी जो आपकी पर्सनल लीडरशिप के मसाइल होंगे इस टाइम पे। बहरहाल अगर कोई शख्स प्रोफेशनल फोरम पे नहीं भी है, प्रोफेशनल लाइफ है भी नहीं, ये जिस्म की क़यादत तो इस दुनिया में आपने करनी ही करनी है। Besides the role you are leading as a father, as a friend, as a corporate head, or as a businessman, or as a political leader, ये सब ना भी हो, as a personal, individual, unique, distinguished human being, इस जिस्म को लेके चलना भी आपकी एक जिम्मेदारी है। और इसमें कुछ हार जाते हैं and they commit suicide and they fall into depression and they go into the darker regions of their lives, और इंसान मुस्बत से निकल के मनफी ख्यालात में आके इतने प्यारे गिफ्ट को जो अल्लाह ने उसको दिया है, इस रिसोर्स को जाया कर देते हैं। Why is this not working out? मैं इस पर थोड़ी सी कुछ बात करके आप मुअज़्ज़ज़ हज़रात का, सामईन का, जिन्होंने मुझे ये शर्फ और ज़र्फ़ बख्शा है कुछ कलाम करने के लिए यहाँ पर, उस छोटे से नीश को आई वुड वांट टू पॉइंट आउट कि हमारा दीन, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इस्लामिक लॉ एंड द इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड डायनामिक्स ऑफ शरिया, जो इंसान को तामीर करने जब आता है, इंडिविजुअल की या सोसाइटी की, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की या एक हेड की, व्हाट आर द डायनामिक्स इन द शरिया in training a human being for him to do some miraculous work in this world. So first of all, कुरान की एक बहुत प्यारी आयत है जो इमामत के प्रीरेक्विजिट्स, लीडरशिप्स की क्रेडेंशियल्स और उसके प्रीरेक्विजिट्स पे इतनी जबरदस्त रोशनी डालती है। अल्लाह सेज वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आदमी को उसके फन में एज अ होल टोटलियन के अंदर या एक स्पेसिफिक फन के अंदर या एक स्पेसिफिक इल्म के या एक स्पेसिफिक टैलेंट एंड स्किल के साथ जो उसको अल्लाह ने दिया है, इमाम बना देते हैं, उस फील्ड का सिग्नेचर बनाते हैं उसको। मतलब वो माइलस्टोन होता है अपनी फील्ड का, मतलब वो हाथ रखेगा तो वो डेफिनेशन बन जाएगी वहां पर। अ पर्सन बिकम्स अ सिग्नेचर इन हिज फील्ड, वजअलना मिनहुम अइम्मा यहदूना बिअमरिना, और वो हमारी हिदायत के साथ हमारी इतनी ज्यादा उसकी स्पिरिचुअल डायनामिक्स हाई होती हैं कि वो जो हुक्म दे रहा होता है अपनी फील्ड के अंदर भी, चाहे दीन की फील्ड में भी हो या प्रैक्टिकल दुनिया की फील्ड में भी, वो सिग्नेचर होता है। उस टाइम पर गलती के इम्कान बहुत मुश्किल होते हैं उस लेवल के ऊपर, बिकॉज़ ही हैज गॉन थ्रू सो मेनी ग्राइंडिंग्स एंड प्रोसीजर्स, और टाइम बेस्ड उसकी सक्सेस और एस्टैब्लिशमेंट होती है जब वो 2 काम कर लेता है। लम्मा सबरु व कानू बिआयातिना युकिनू, सबर एंड यकीन। नाउ प्रॉफिट सेज एंड कुरान सेज सबर, लम्मा सबरु व कानू बिआयातिना युकिनू, ये 2 को होल्ड करके रखिएगा। एंड आई विल ब्रिंग इन सम अदर इंग्रेडिएंट्स टू ओपन दीस 2 वर्ड्स फॉर यू टू बी एन इमाम इन योर फील्ड। एंड इफ यू हैव बिकम एन इमाम इन योर फील्ड, दैट मींस लाइफ इज कॉलिंग यू टू डू समथिंग न्यू। रुकना नहीं चाहिए। आई फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग डाउन इन देयर लाइव्स, वो खत्म होता जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये मौत तक खत्म नहीं होता। मौत तक यू हैव टू सर्व समथिंग, किसी विजन को, किसी काम को, किसी रोल, ये कभी खत्म नहीं होता। इनफैक्ट जब आप सब कुछ ही अचीव कर जाते हैं तो इनफैक्ट आपके पास उस टाइम पर
जो एक रोल है लीडरशिप का वो ये है कि आप अपने फाइनल प्राइवेसी को एंजॉय करें अल्लाह के साथ बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड, सो इट नेवर एंड्स अप। बट दुनिया में किसी चीज के अंदर भी अपने परसू करने के लिए, उसको कोई मकाम हासिल करने के लिए, ये दो प्री रेक्विजिट्स हैं। इंसान का जो इंटरनल इनर सेल्फ है, द ह्यूमन हार्ट, द होल थिंग इज अबाउट द हार्ट। इट इज द हार्ट दैट ये दिल है जो उन अंधेरों में रोशनियां ढूंढता है, ये दिल है जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। इन्ना फिल जसदी मुज़ग़ा, इंसान के सीने के अंदर एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु। अगर इस दिल की उस हिस्से की डायनामिक्स, उसकी नरिशमेंट, उसकी नर्चरिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसका डायग्नोसिस, उसकी तरबियत, तस्फिया, तस्किया, क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, ये सब डायनामिक्स के ऊपर अगर सही तरह काम किया जाए तो सलहल जसदु कुल्लु, इंसान का जिस्म वो कर सकता है जो इंसान परसीव नहीं कर सकता। वइज़ा फसदत, एंड इफ दिस पार्ट इज फासिद, करप्ट, नॉट डेल्ट प्रॉपर्ली, इसकी सारी अंदर की जो स्पिरिचुअल इनर वर्ल्ड अगर इसकी डायनामिक्स के साथ सही तरह काम नहीं किया गया, फसदल जसदु कुल्लुहु, इंसान का पूरा जिस्म जवाब दे जाएगा। ये अल्लाह का सबसे खूबसूरत हसीन तरीन शाहकार जो है, ये एक टाइम पर इतना मफलूज हो जाता है, यही इंसान इतना मफलूज हो जाता है कि अल्लाह इसे इंसान भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ही बिकम्स अ वेस्ट ऑफ दिस प्लैनेट, एंड दैट इज अल्लाह सेज कि अ टाइम कम्स लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, अगर एक इंसान का दिल उन डायनामिक्स को नहीं सीखता, वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, और आंखें हैं जिनके साथ वो बसीरत और वो विजन नहीं उतारता अपने अंदर, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, एंड ही हैज द आईज विद व्हिच ही डजंट डेवलप हिज हार्ट फर्स्ट, क्लियर द डिस्क्रिपेंसीज, एस्टैब्लिश अ स्ट्रांग परसेप्शन, उलाइका कल अनाम, अल्लाह इसे इंसान नहीं मानता, ये अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये जानवर है। बट देन अल्लाह डजंट स्टॉप, ही सेज बल हुम अदल, जानवर भी अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर भंड नहीं मारते। तू है इंसान, जब तू प्रोसीजर से हटेगा ना, एसओपीस, तो तू कहीं का नहीं रहेगा। इंसान का मसला ही है, बेढंगा, बेतरतीब और उसूलों को छोड़ के जब भी इसने कभी गुजारने की कोशिश की है, ये बर्बाद कर देगा और बर्बाद हो जाएगा। दैट्स व्हाई कुरान एंड सुन्ना इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स, शरिया इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रनिंग मैन, कि इसे कैसे चलाना है। सो रिलीजन सेज कि इंसान का जो दिल है ना, चाहे वो किसी भी काम में, वो इंसान का दिल दो चीजों से बनता है। एक का ताल्लुक एकेडमिक्स के साथ है, एजुकेशन, इल्म, द लाइट, टेक्निक। अब ये किसी भी फील्ड के अंदर हो, एज अ फादर, एज एन इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, इवन एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड इवन एज अ मुस्लिम, इवन एज अ पाकिस्तानी। एक का ताल्लुक फन को, स्किल को समझने के साथ है, उसको जानने के साथ है, उसको डेवलप करने के साथ, उसकी एप्लीकेशन के साथ, उसको मुख्तलिफ स्केल्स और डायनामिक्स में रख के उसकी रिलायबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी को जानने का नाम इल्म, नॉलेज, वैल्यूज, प्लस एंड माइनस। और दूसरी पावर जो इंसान के दिल की है, जिससे इंसान का इनर परसेप्शन, इनर हार्ट बनता है, दैट इज टू डू विद अमल, कुव्वत इरादा, नीयत, फोर्स टू एक्ट, फोर्स टू प्रोड्यूस, फोर्स टू परफॉर्म। ये दोनों को उठाने का नाम ही बंदे को उठाने का नाम, और ये दोनों अगर ड्रॉप डाउन हो जाए तो ये बंदा कहीं का नहीं रहता। इंसान का इल्म जो है, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो इंटेलेक्ट है, किसी भी फील्ड में, किसी भी फन में, किसी भी इल्म में, किसी भी दर्जे पे, इंसान अगर वो काम खींच नहीं पा रहा, या उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, या उसको रिटेन नहीं कर पा रहा, या आगे वाले स्टेशन के लिए चढ़ नहीं पा रहा, द रीजन इज ही हैज डाउट्स, शक शुबात इन हिज हार्ट रिलेटेड टू हिज विजन। या अपने पर यकीन नहीं है, या अल्लाह पर यकीन नहीं है, या रिसोर्सेज पे यकीन नहीं है, या मटीरियल पे यकीन नहीं है, और लोगों पे यकीन है। डाउट्स, कंप्लीट डाउट्स। एंड अ डाउटफुल हार्ट विल नॉट पंच एज पावरफुली in comparison to a person who वो जानता है कि मैं मारूंगा और टूट जाएगी, because that push, मसल का पुश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जो स्पिरिट का पुश होता है। और अगर रूह ही साथ नहीं है जिस्म के, आप ये जिंदगी नहीं गुजार सकते। The growing depression in Pakistan is because the flesh is not in alliance with the soul. रूह जो है वो जिस्म के साथ नहीं खड़ी। दोनों के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट। इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, उसका जिस्म बूढ़ा होता है, रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। रूह वक्त के साथ ग्रो करती है। रूह के डायनामिक्स, उसको ट्रेन करने के डायनामिक्स, फिजिकल मटेरियल के डायनामिक्स से बहुत डिफरेंट। या तो उसकी लीडरशिप, या उसका फैसला, या उसका डिसीजन, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी रिस्क मैनेजमेंट, उसका फियर मैनेजमेंट, उसका पूरा सब्सटेंस जो स्ट्रगल उसका लगा हुआ है, आपका या किसी का भी, या वो इस एंड से मार खा रहा होगा कि ही डजंट हैव दैट गट टू कैरी इट अलोंग, शक है उसमें, वहम है उसके, या उसकी लीडरशिप इधर से मार खा रही है, या ईदर हिज लाइफ इज गेटिंग बीटन, इज गेटिंग नेल्ड, इज गेटिंग ग्राउंडेड, कि उसका जो कुव्वत इरादा, उसकी नीयत, उसका फोर्स टू परफॉर्म जो है वो फासिद हो गया। उसमें शहवात आ चुकी हैं, डिजायर्स आ चुकी हैं दुनिया की,
अपने विजन से रिलेटेड जो कुर्बानी देने का जज्बा था, अपने रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके जो प्रीरेक्विजिट्स थे फिजिकल एक्सरसाइजेस के और मेंटल एक्सरसाइजेस के, उसने उसमें कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इसलिए इमाम इब्न क़य्यिम सेज अमराजुल कुलूब नौआन, दिल की दो ही बीमारियां हैं और लीडरशिप की भी दो ही बीमारियां हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी दो ही बीमारी, अशक व शहवात। इट्स ईदर द 2 Ds और द 2 शीन, या डाउट है या डिजायर है, या शक है या शहवात है। And you have to convert these 2 Ds into 2 Cs, that is अपने इल्म को सर्टन बनाए। One C is the certainty and the second C is consistency। कुछ लोगों के पास इल्म होता है, अमल नहीं होता, और कुछ लोगों के पास अमल होता है मगर इल्म के अंदर फारिग। एक को ना इवैल्यूएशन आती है, ना वैल्यू सेटिंग आती है, ना स्टैंडर्डाइजेशन आती है, गेंडे की तरह सींग मार रहा है, द वॉल इज नॉट गोना ब्रेक। क्योंकि हर ऑब्स्ट्रक्शन और ओपोनेंट को डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। इट्स ऑलवेज नॉट माइट वर्सेस माइट, समटाइम इट्स ब्रेन वर्सेस माइट। टेक्निक, या उसको तरीका नहीं आता, या तरीका तो आता है मगर काम नहीं करना चाहता। उसकी नफ्सियात के अंदर काहली, कमजोरी, वैल्यू सेटिंग सही नहीं है, जिसकी वजह से वो ना अपनी इज्जत करता है, ना अपनी फील्ड की इज्जत करता है, ना अपने मकाम की इज्जत करता है, ना अपने लोगों की इज्जत करता है, और एक टाइम पर अपने ह्यूमन रिसोर्स को जाया कर देता है और लोगों को भी जाया करता है और कहता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਣਾ। वेरी टिपिकल। So if you want to actualize yourself and if you want to actualize your heart and if you want to actualize your leadership, पढ़ना ना छोड़ेंगे। इल्म नहीं रुकता कभी। इस दुनिया के अंदर लोग खत्म हो गए, इल्म नहीं खत्म होता। और इल्म भी 2 किस्म का है। एक टेक्स्ट बुक रिलेटेड होता है आपकी फील्ड्स का, जो आप 4 साल के बैचलर्स में पढ़ते हैं, और एक इल्हाम होता है फील्ड के अंदर, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। इसलिए कहते हैं दीन पढ़ाते हुए भी इंसान का एक ऐसा लेवल आ जाता है कि वो तफसीर करते हुए ना वो ऊपर से आ रही होती है, क्योंकि यू हैव स्पेंट सो मच टाइम, यू हैव स्पेंट सो मच लव, so much hope, so much fear is involved with your vision कि आपको ख्वाब भी इसी चीज के आते हैं। इतना सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके इंसान उस फील्ड में उसकी जुबान चलती है, उसका दिल चलता है उसका। That's the time when you feel ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? It's my heart, मेरा दिल नहीं मानता इसको। ये आपको तब आएगा जब आपका इल्मी कॉन्सेंट्रेशन और आपका अमली कॉन्सेंट्रेशन, आपकी इल्मी इन्वेस्टमेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपनी कुल लाइफ के साथ और अपनी अमली कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक्सेल कर रही होती है। सो जिंदगी के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी रोल के, वो शुरू में क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, मगर एक टाइम पर द क्वांटिटेटिव स्ट्रगल हैज टू एंटर इनटू क्वालिटेटिव स्ट्रगल। इसलिए इस्लाम से मुस्लिम से मोमिन बनने के लिए अमल चाहिए। यू नीड सुन्नास, यू नीड वाजिबात, यू नीड मैंडेटरी डूज एंड यू नीड प्रेफरेबल डूज, स्टफ लाइक दैट। मगर मोमिन से मोहसिन बनने के लिए क्वालिटी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्शियस, और वो बगैर इल्म के नहीं आता। सारे डॉक्टर बन जाते हैं, सब इंजीनियर्स बन जाते हैं, मगर सिग्नेचर वो बनता है कि जो अपनी प्रायोरिटाइजेशन के अंदर अपने उस विजन को, अपनी उस फील्ड को मैंडेटरी तो देता ही देता है, प्रेफरेबल लर्निंग भी ले लेता है उसकी। वो हिस्सा जहां खुदा इस दीन के साथ भी कहता है कि ये तेरा चॉइस है, चाहे तो दीन में ले आ, चाहे तो डू इट योरसेल्फ, खाना पीना चलना फिरना, अगर वहां पर भी वो अपनी कॉन्शियसनेस को लगा देता है इस फील्ड में, और सिग्नेचर हो जाएगा। That's what makes you a Muslim. That's the highest level of ईमान, कि जहां चॉइस है तेरे पास अपने आप को उस फील्ड के अंदर कि तू चाहे तो रिलैक्स हो सकता है, वो वहां पर भी बीबी को सुलाने के बाद पढ़ रहा होगा। You know why? Because he respects his heart. He is a breed who's meant to be big. He is a breed who has to be big. He is meant to conquer the world. तो किसी भी फील्ड के अंदर उस इमामत को पुश करने के लिए जिस तरह की प्रायोरिटाइजेशन इल्मन एंड अमलन, परसेप्शनली एंड परफॉर्मेंस वाइज, कंसिस्टेंसी एंड सर्टेनिटी वाइज, नॉलेजेबली एंड एक्टिविटी वाइज अपने मैंडेटरीज, प्रेफरेबल और चॉइस बेस्ड लेवल्स पे आप देंगे, उतना बड़ा रोल लीडरशिप का ये कायनात खुद आपकी गोद में आके रख देगी। क्योंकि एक अरसे तक आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर ये रिस्पॉन्ड करती है आपको। That's it. Even God, अल्लाह says, "अना इन द ज़न्नि अब्दी बी", मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, तू जैसा दिल लाएगा मैं वैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। ये दुनिया अल्लाह फरमाते हैं द सेकंड रिसोर्स, देयर आर 4 रिसोर्सेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जिसके साथ वो किसी भी फन के अंदर एक माया नाज शख्सियत बन सकती है। द फर्स्ट रिसोर्स इज यू, द सेकंड रिसोर्स इज द वर्ल्ड, पीपल, सेकंड इज द पीपल, थर्ड इज द मटीरियल, एंड फोर्थ इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द सुपरनैचुरल एंड द नेचुरल रिसोर्स। और इन चारों को एग्जॉस्ट करके, प्रायोरिटाइज करके, इल्मन एंड अमलन मैक्सिमाइज करके ही एक्चुअलाइजेशन हो सकती है। किसी भी जगह के ऊपर जहां कॉम्प्रोमाइज होगे तो फिर रोना धोना नहीं होना चाहिए कि जिंदगी ने मेरा साथ नहीं दिया, खुदा ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जिस्म ने मेरा साथ दिया। नो, ये हमने खुद चूज किया था, हमने खुद एफिशिएंसी खत्म की, हमने खुद इफेक्टिवनेस खत्म की अपनी लाइफ के अंदर, हमने खुद जाया किया। और लास्ट जस्ट हिटिंग दी स्पॉट्स, इल्म एंड अमल, प्रायोरिटाइजेशन एंड द लेवल्स ऑफ एहसान एंड ईमान एंड इस्लाम,
अल्लाह ने जो कुरान का एक पैटर्न दिया है कि जो ह्यूमन एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इंसान का कामिल होने का, कामिल जिसे कहते हैं, वो है युज़क्की व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, सेल्फ प्योरिफिकेशन, नॉलेज। एंड व्हाट इज नॉलेज? वज़्उ शै अला मौज़िही, चीजों को उसकी जगह पे रखना। 8 है तो 7 भी जुल्म है, 6 भी जुल्म है। 8 हक है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, पैशन, ड्रीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप, मुल्क, कौम, उम्मत, दोस्त, जिस्म, खुराक। थर्ड अल्लाह से वल हिकमा। अक्सर लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ ही नहीं होता अपने आप को कैरी करने का, मोटिवेशन ही नहीं होती, तस्किया नहीं होता, हार्ट डिमेंटेड होता है साइकोपैथीज के साथ। वो क्या ख्वाब देखेगा, वो क्या लीड करेगा? अगर चलो वो यहाँ से निकल भी आता है तो उसके पास इल्म ही नहीं होता हाउ टू डील लाइफ एंड हाउ टू डील हिज ओन स्किल। क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, अगर आप इंजीनियर भी बन गए या डॉक्टर भी बन गए, आपको क्या लगता है यू आर नॉट गोना फेस पॉलिटिक्स? रोना बंद करें सर। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो या लाइफ की पॉलिटिक्स हो, जिंदगी एक सख्त सफर है सर। उसमें लोगों के साथ आपका टाकरा भी होना है और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी होने हैं, दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे इस सफर में। मुल्क को भी मैं ये एडवाइस करता हूँ। तो इल्म सिखाता है इंसान को कहां पर कौन सी कितनी किस इंटेंसिटी पे कितनी रखनी होती है। वज़्उ शै अला मौज़िही, और जहालत की प्योर एकेडमिक डेफिनेशन ये वज़्उ शै अला गैरि मौज़िही। जो उसका स्टैंडर्ड बनता था, यहाँ इतनी बात करनी है, इतनी करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, इस तरह से प्रेजेंट करना है, इतनी कॉम्पनसेशन करनी है, इतनी ट्रीटीज करनी है, उसमें फारग। और यही शायद अल्फाज और यही मिस कैलकुलेशन और ये जो इवेल्युएशन के एरर्स हैं जिसकी वजह से आज हमारी फैमिलीज, हमारे फैसले, हमारे दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, हमारे रिसोर्सेज जाया हो चुके हैं। इट्स बिकॉज हमारे फैसले सही नहीं है, क्यों? इल्म ही नहीं है। और आखिरी अल्लाह के नबी, अल्लाह देख कितनी प्यारी साइंस है, कुरान कहता है अक्सर लोगों के पास क्लेंजिंग तो होती है दिलों की, लीडर्स के पास दिल साफ होता है, साइकोपैथीज नहीं होती, तकब्बुर नहीं होता, जेलसी नहीं होती, हसद नहीं होता, शक नहीं होता, शहवात नहीं होती, दिल साफ है, काम कर गया दिल। इट्स हार्ड जॉब भाई, क्योंकि तस्किया जो है ना वो विजन के बाद भी है, विजन से पहले भी। कुरान में 2 जगह है, तालीम से पहले भी तस्किया है, तालीम के बाद भी तस्किया। सो द प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट नेवर एंड्स अप। मौत तक जो है ना ये नफ्स धोखा दे सकता है, दिल सही रखना है। क्योंकि अगर आप एक नेगेटिविटी के साथ विजन बनाएंगे ना कि मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूं, मैं इसलिए इस फील्ड में लीड करना चाहता हूं क्योंकि ये इसको डाउन करना है मैंने, तो आपके जिस्म, द मोमेंट यू गेट नेगेटिव, द मोमेंट योर बॉडी विल नॉट वर्क विद योर स्पिरिट। आपने उसी वक्त कमजोरी का फतवा लगा दिया अपने, हार जाएंगे आप। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं इसलिए, क्योंकि बनना आपको बनाया इसलिए गया कि आप कुछ बने, तब तो आप बन सकते हैं। लेकिन आप इसलिए कुछ बनना चाहते हैं कि मैं इससे इसको इसके सजदे करा दूं, इसको नीचे लगा दूं, लोगों में मशहूर हो जाऊं, ये चीजें इमाम नहीं पैदा करती। क्योंकि एक टाइम पर अपने विजन, अपने गोल के अंदर ना अपना जिस्म देना पड़ता है इंसान को। रूह तो जाती ही जाती है, परसेप्शन, फीलिंग्स, जज्बात के ऊपर तो बलडोजर चलते ही चलते हैं, ये जिस्म भी देना पड़ता है अपने अपने ख्वाबों को एक टाइम पर, और कभी कभी इसकी शहादत भी देनी पड़ती है टू बी एक्चुअलाइज इन दैट फील्ड। वो विजन इतना बड़ा होता है, इनकम्पास कर लेता है सब। तो अगर इम्प्योरिटीज नहीं है तो इल्म नहीं है, अगर इम्प्योरिटीज नहीं है और अगर इल्म है तो द लास्ट पार्ट इज द विजडम, एप्लीकेशन, द लॉ, द आर्ट ऑफ वॉर। अपने इल्म को अप्लाई कैसे करूं इस फील्ड में? इंजीनियरिंग तो आ गई, मगर फील्ड के अंदर पॉलिटिक्स आई, अपने से बड़ा ओपोनेंट आया डाउन, किसी ने घूरी गिरा दी डाउन, किसी ने बात लगा दी, गुस्सा आ गया, मैं फील्ड छोड़ रहा हूं, किसी छोटे से बात आ गई, इनसिक्योरिटी। अगर ये तीनों का कॉम्पोजिशन सही नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी एक्चुअलाइज। एक्चुअलाइज होने के अंदर लेने का भी गुर्दा होना चाहिए और देने का भी जिगर होना चाहिए, और इस सब के लिए यू नीड अ वेरी क्लीन हार्ट एंड यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट पीपल, गॉड, योरसेल्फ एंड द रिसोर्सेज। अक्सर लोग अपने आप को समझ, इसलिए तो बड़ा जबरदस्त शेर है अरबी का, मन बदा बिसियासत नफ्सिही फक़द अदरका सियासत अन्नास। जो दिल की सियासत जानता है ना अपनी, तो लोगों की भी सियासत भी संभाल लेगा, वो मैनेजमेंट के अंदर अच्छा होगा। मगर मन ला यारिफु नफ्सहू, जो अपने नफ्स को नहीं जानता, वो क्या दुनिया को जानेगा, वो क्या उसूलों को जानेगा, वो क्या मैनेज करेगा दुनिया को, वो क्या मैनेज करेगा टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मुल्क को। क्योंकि दुनिया इंसानों से बनती है सर, इंसानों को काट के मोनास्टिसिज्म भी इस्लाम नहीं है और इंसानियत भी नहीं है। और इंसानों में ही खपे रहना और एक आइसोलेशन जो रात के वक्त की होती है लीडर्स की, मुहासिबतुन नफ्स। लीडर अकेला होता है सर, उसकी क्लास ही होती है, ना उसका दुख, ना उसका गम, ना उसका दर्द, समझ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पॉन्डर, उसकी कैलकुलेशन, उसकी इवैल्यूएशन, उसका कॉन्टेम्पलेशन आम आदमी से बहुत हैवी होता है। वो अपनी सारे रिसोर्सेज सोचने समझने में लगा रहा, तो वो इसलिए लीड कर सकता है क्योंकि उसके पास ट्रबल शूटिंग का फन बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस का फन बहुत ज्यादा है, फील्ड को समझता है, वो फील्ड की हर किस्म की प्रॉब्लम्स का इतना बड़ा एक्सपोजर उसने लिया होता है बनिस्बत उसके मुकाबले में जिसे अपनी जिंदगी खाने पीने पार्टी तफरीहों में लगी हुई है। और हक भी यही है कि ऐसे शख्स, और क़यामत की निशानी एक ये है कि लोग जिन्होंने वक्त लगाया होता है ना फील्ड के अंदर, उनकी अहलियत होती है, वो डिजर्व कर रहे होते हैं स्टेज, उनको उतार के ना एक नाअहल के हाथ में रख देंगे सीट कि तू चला। दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विद पोटेंशियल एंड प्रोफेशनलिज्म दैट यू कैन डू, कि आप एक गैर अहल को उस जगह पे खड़ा करते हैं। सो इन शॉर्ट, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, काफी कॉन्सेप्ट्स खोले हैं मैंने, लेट्स रैप इट अप। माय फर्स्ट क्वेश्चन
for you to ask yourself and the world. Failure कितना है? Second, what did you learn out of? सीखा क्या आपने? Second, do you have the heart to give it to the world? अक्सर लोग इल्म तो सीख जाते हैं, मकाम की कॉम्प्लिकेशंस को समझ जाते हैं, मगर ये पूरी जिंदगी की लाइफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब सबसे बड़ा डेंट ही लाइफ का ये वो एंड में जाके फिरौन बन जाता है। मैं समझता हूँ इमामत और क़यादत का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट ये है, पहले दिल को ठीक करना, फिर हुनर को सीखना, फिर फील्ड में सीखना, उस्ताद बनाना किसी को, लोटा उठाना उसका, फील्ड में मार खाना, रगड़ना अपने आप को उसके अंदर, फिर और ये सारे प्रोसेस में क्या करना है, इंसान के दिल को चोट लगती है, उसको बैलेंस करते रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। क्योंकि अगर आप किसी मकाम तक पहुंचे और आप फिरौन बन गए, क्योंकि फिरौन देने वाला नहीं था, छीनने वाला था। लीडर दे के चला जाता है, बेंच ही दे जाता है, एंड ही गोस टू अ न्यू स्पॉट, ही क्रिएट्स अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बनाता है वो वहां पर। मगर आप कहेंगे जी मैं उन नेथे तक पहुंच गया एंड नाउ मैंने किसी को नहीं बख्शना, ये लीडरशिप नहीं है सर। डेंट लगा आपको, आजमाइश है, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मगर उसके बाद आपने भी वही किया जो लोगों ने आपके साथ किया। इसलिए मैं कहता हूं अपने नाक़िस इल्म से आप लोगों के सामने जिंदगी के इस जिहाद में, अपने आप को पहचानने में, अपने नफ्स को जानने में, इस दुनिया को जानने में और कुछ बनाने में इंसान रहिएगा सर। अक्सर लोग मकाम तो पा लेते मगर इंसान नहीं रहते। या हायर स्ट्रीम में एरोगेंस हाई हो जाती है, या लोअर स्ट्रीम में डिप्रेशन और बुज़दिली आ जाती है। इसलिए अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे टू लीड समथिंग, वर्क ऑन दीज डायनामिक्स सर। आपका इल्म कमजोर है या आपका अमल कमजोर है या आपकी टेक्निक, इसलिए कहते हैं टैलेंट ऑफ टी, द टी ऑफ टैलेंट। अगर ये टेक्निक के दरवाजे पे नहीं गया, टैलेंट हर किसी में होता है, मगर टेक्निक जो होती है ना वो एक प्रोसेस है पूरा। उस्ताद के पास जाके अपने फन को निखार के, कॉन्टेम्पलेट करके, उसको एक्सरसाइज करके, अगर टेक्निक नहीं आई ना आपके टैलेंट के अंदर, और वो दूसरे दरवाजा जिसका नाम टेम्परामेंट है, सबर, रेजिलियंस, रोज गिरना, रोज सीखना, रोज नीचे लगना किसी के, रोज अपने नफ्स को मारना। अगर इंसान का टैलेंट किसी भी फील्ड का, एक शेफ ही क्यों ना हो, अगर टेक्निक और टेम्परामेंट के दरवाजे से नहीं गुजरा ना, तो फिर वो एक और टी में चला जाता है, इसे टॉयलेट कहते हैं, और कहीं एंड नहीं होता वो। दिस इज द फिक ऑफ टी, दिस इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ टीज आई वुड से। और ये जिंदगी के अंदर ये लर्निंग और ये एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, ये क्लेंजिंग, ये डाइवर्सिटी, कॉन्टेम्पलेशन, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंस, फाइटिंग डाउट्स एंड डिजायर, ये सर मौत तक खत्म नहीं होती। और अगर आपके विजन में इतना दम ही नहीं था कि ये सैचुरेट हो चुका है, तो सर अपने आप को जाया मत करें, फाइंड अ न्यू लाइफ, लीड अ न्यू विजन, डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेस। एंड इफ यू थिंक अब आप इसको कैरी नहीं कर सकते, तो हजरत उमर की लीडरशिप यही थी कि उन्होंने एक टाइम पर लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल ये था कि किसी और को लीडरशिप दे देना। सबसे बड़ी लीडरशिप ये है, सबसे बड़ी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि आप किसी और को उस मकाम पे ले आए कि बेटा तू चला अब इसको, हमारा टाइम हो। मेरी बॉडी और मेरा माइंड स्किलफुली वहां तक नहीं जा सकता जो तेरे में पोटेंशियल है, व्हाट गॉड इज गिविंग यू। क्योंकि वफौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के हर पोटेंशियल के ऊपर एक पोटेंशियल, यू हैव टू हैव द हार्ट टू गिव इट टू देम। एंड इंशाल्लाह इन उसूलों को अप्लाई करके आप फैसला करके फील्ड में भी आ जाएंगे, आप लीड भी कर लेंगे। एक आउट क्लास लीडर अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुश्मनों को दोस्त बनाता है, दुश्मनों के दिलों में रोब डालता है, स्पिरिचुअल रोब डालता है। लीडर होता ही वो जो खौफ को भी उम्मीद में बदलता है, नफरत को मोहब्बत में बदलता है। मगर अगर इस वॉक के अंदर आपने दोस्तों को दुश्मन बनाया, भाइयों को गैर किया, अपनों को गैर किया, इस जिस्म को अपने आप से चिढ़ चढ़वाई, अपने इल्म को जहालत बनाया, अपने अमल को कसलान और कमजोरी बनाई है, और अल्लाह को अपना दोस्त नहीं बनाया, और लोगों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, और अपने घर वालों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, आई थिंक सर ये वी हैव फेल्ड एक्चुअली, हार गए। 2-3 किले फतह करके ये कोई जीत नहीं होती। जीत ये होती है जो काम किया है, वेस्ट इंडीज में भी किया। और दुख की बात मेरे लिए पर्सनली एज अ स्टूडेंट ये है कि देखें, जब आपका एक फील्ड के अंदर लॉग बुक होता है ना, 600-700 साल का लॉग बुक होता है, तो वैसे ही आपको हराना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की हर फैसेट के ऊपर इतना काम है मुसलमानों का 600-700 साल पे, मतलब बात ही नहीं कर सकता कोई हमसे, इतने चीते थे हम लोग। वो सो गुड, उसकी जीत को माने सर कि उसने आपके नीचे लग के, आपसे निकाल के, उसको रिफॉर्म करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके आपके ऊपर फिर बैठा है वो आके। साइंस, मेडिसिन, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, दे आर गुड, दे आर रियली गुड। शिकस्त मानेंगे तो जीत मिले। ये जो इंतजार चल रहा है ना कि आसमानों से कोई बड़ी सुपर नेचुरल हेल्प आ जाएंगी और उम्मत रिफॉर्म हो जाएगी, मुल्क भी रिफॉर्म, मेहनत करनी पड़ेगी, इल्मन भी, अमलन भी, तस्कियतन भी, तालीमन भी, हिकमतन भी। You have to work on yourself. You have to work. You have to face the monster. In fact, सूरह यूसुफ का एक बड़ा खूबसूरत तोहफा आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत दूंगा। जब दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम इंसान करने जाता है ना, तो सबसे गंदी गलीज आवाज जो उसको आती है ना, उसकी in walk of his life towards being actualized is yourself. Inna nafsa la अम्मारतुम बिस्सू। ये जो नफ्स है ना इंसान का, ओ दुनिया, इसलिए कहते हैं अल जिहादु बिन नफ्स काना अखबरु मिन अल जिहाद बिस्सैफ। द फाइट विद योर ओन परसेप्शन, अपने आप से जंग तलवार के साथ जंग से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मैदान जंग में भी धोखा देता है तो इंसान को ये नफ्स देता है इसका। आपकी फील्ड के अंदर रोज आप अगर नहीं सोच रहे, आप अगर काम नहीं कर रहे, तो याद रखें कोई आपके खिलाफ जरूर काम कर रहा है, एंड यू विल बी रिप्लेस्ड। ये सीट निकल जाएगी आपके पास,
तो एक लीडरशिप होती है पहुंचने का नाम है, और एक लीडरशिप है रिटेन करने का नाम, और एक लीडरशिप है नेक्स्ट जंप लेने का नाम। और इन पे ये प्री रेक्विजिट्स होते हैं। कुछ लोग गेंडे की तरह काम करते हैं, सर दे देते हैं, और कुछ लोग इतना इल्म पढ़ लेते हैं मगर हिलना कख नहीं, they don't move, they don't do exercises. So you have to work on the techniques and you have to work on consistency, exercise. And इंशाअल्लाह ताला एक टाइम आएगा आपको इतनी एफिशिएंसी आप में आ जाएगी और इतनी इफेक्टिवनेस होगी कि आपके 4-5 काम तो रास्ते में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और आप देखिएगा आपको मिरेकल्स मिलेंगे। और असल ग्रोथ, असल रिस्क, असल इंकलाब ग्रे में होता है, ग्रे में, कुछ डिफाइंड नहीं होता। पाकिस्तान को भी आपने अगर वर्ल्ड टाइगर बनाना है सर, ग्रे में है। ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है कि मैं इस जैसा मुल्क बन जाऊं, मैं इस जैसा मुल्क नहीं बन। पाकिस्तान अपने अंदर एक सैंक्टिटी है पूरी, इट्स अ सैंक्टिटी इन इटसेल्फ, जो किसी की कॉपी पेस्टिंग करके नहीं बनाता। ये एक सोच थी आइडियोलॉग्स की, ये वही करेगा जिसके ऊपर इसके बाप ने बनाया था इसको, वो ग्रे में ही बना था। ये एक ग्रे ख्वाब था किसी का, ये सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है कभी। उस ब्रिटिश साम्राज्य के बाद हमने लोगों से लेना शुरू कर दिया। नहीं सर, लोगों से ली जाती है मैक्रोस, मगर लीडर ग्रे में पैदा होता है सर, और अकेला होता है सर। एक बड़े अरसे तक वो डिस्कवर्ड ही नहीं होता। जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, वो अगर आज किसी मकाम पर हैं उन्हें पता होगा, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये बहुत प्यारा सा, बड़ा तकलीफ दे और बड़ा स्वीट तकलीफ दे सफर है क़यादत का, इमामत का। समझ ही नहीं सकता इसको कोई। बहुत खूबसूरत है, रोड के पार, नहर के पार, दरिया के आगे का बहुत खूबसूरत मंजर है, मगर यू हैव टू डू दिस वॉक। इसलिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉक ऑफ लाइफ इज द वॉक अलोन। अकेला चलता है आदमी उसके, फिर एक काफिला आता है उसके साथ, फिर आइडियोलॉग्स आते हैं, देन ही मीट्स द राइट पीपल। और आज अगर आपके साथ सही लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तन्हाई को ऑनर करें। अल्लाह ने बड़े क्लास के लोग लाने आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए आपके साथ गंद कचरा अलग कर दिया आपसे। आपको जो टीम देनी है अपनी फील्ड के अंदर अल्लाह ने, वो आउट क्लास टीम देनी है, इसलिए अल्लाह वो इंप्योरिफिकेशंस, खबीस में से तैयब को अलग करता है। वेट फॉर योर टाइम, देन दैट्स कमिंग टू यू, स्टिक देयर, स्टे देयर। कौमें आएंगी, कौमें चली जाएंगी, फजूल। अगर आप पॉजिटिव विजन के साथ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क़यादत को अगर यू नीड द बेस्ट टीम आउट देयर, इट्स गोना कम टू यू, वेट फॉर इट। अल्लाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ देर कुएं में रखता है, कुछ देर जुलेखा के महल में रखता है, और कुछ देर जेल में रखता है, और फिर बादशाह दी थी। एक्चुअलाइजेशन ग्राइंड होके आती है, कट मर के आती है, इंप्योरिफिकेशंस को खत्म करके आती है, टाइम लगता है उसके अंदर। और उसके बाद फिर अल्लाह दिखाता है सम्राट के, और उसके बाद भी चेक करता है बंदे का पुत्र है नहीं है, इंसान है या नहीं अभी भी। क्योंकि लेके अल्लाह इतनी बड़ी आजमाइश नहीं लेता जितनी दे के करता है। क्योंकि जब भी इस कौम को, जब भी इंसान, कौम भी नहीं, इंसान के माइंडसेट को जब भी रिसोर्सेज मिले हैं, उसने फिरौनियती का दावा किया, वो बैलेंस से हटा है हमेशा। और द मोमेंट आप बैलेंस से हटे हैं, आपकी लीडरशिप जो है इट्स डिस्ट्रॉयड ओवर देयर। आप रिसोर्स भी जाया करेंगे, आप इंटेलेक्ट भी जाया करेंगे, आप अहल को भी ऊपर नहीं आने देंगे, आप मेरिट को भी खत्म कर देंगे, आप सब कुछ खत्म करने के बाद फिर रोना भी एंड में होगा, ना अल्लाह ने कुछ किया, ना बंदे मैंने चंगे मिले, आई नेवर फाइंड द राइट पीपल, आई नेवर फाइंड द राइट गॉड, एंड आई नेवर फाइंड द राइट माई सेल्फ। ये कंप्लेन बॉक्स बन के आप देख लें, ना किसी ने पाकिस्तान की गलियां साफ करनी है, ना किसी ने पाकिस्तान का कचरा उठाना है। आग आज भी ठंडी हो सकती है, इब्राहिम लेके आना है बस आपने। व्हाट इकबाल सेज, यू नीड टू ब्रिंग अ मूसा, तूर इज रेडी फॉर यू। आपको अपने फन के अंदर इमाम बनने के लिए जो चीज रोक रही है वो आपका अपना आप है। यू आर द बिगेस्ट एनिमी यू आर गोना फेस अगेंस्ट योरसेल्फ। इट इज नॉट द वर्ल्ड, नॉट द पीपल, नॉट द रिसोर्सेज, नॉट योर कलीग्स एंड नॉट द कंपनी। ये तो बना ही आपके लिए, फॉर यू टू हार्नेस इट, कंट्रोल इट, मोल्ड इट, नेल इट, बी हम्बल एंड कैरी फॉरवर्ड। कई सुनी बात में गलती और माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।